Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Have a great day, and I am very hopeful about the students that they must be learning everything I am sharing on the YouTube. So today we are going to discuss the chapter 4, part 2. In chapter 4, previously what we have studied, let's have a look of this. If we go back, we'll come to know that we discussed the, as the chapter states, classical macroeconomics, money, prices, and interest. Up till now, we have discussed money and prices. Now, today's topic is interest. So, this is Dr. Azra Batool, Professor, School of Economics, Hajinzag University, Bhutan. So, this reference is Richard T. Froyen, the chapter number 4, Classical Macroeconomics. So in this, we have discussed the quantity theory of money, which is known as a QTM. And this quantity of theory of money was presented by Fisher, and then Cambridge approach. And then we finally concluded that according to Fisher, the quantity theory of money is price determination theory. And then we discussed that Cambridge approach is one step ahead of the Fisher approach, as it says that this is the quantity theory, this is the demand for money theory. And then finally we concluded that actually the QTM is the, you may say that implicit theory of the demand, aggregate demand in the economy, which they did not prove. Classical never proved it. So by and by, we just derived the aggregate demand curve, and finally we derived the aggregate supply and aggregate demand. And we concluded that according to QTM and according to classical school of thought, the aggregate supply curve is vertical due to the full employment, and the labor quantity is determined in the labor market from demand for labor and supply of labor. So where there is equilibrium in the labor market, it will bring equilibrium in the commodity market, like in this diagram. And we have concluded that if the aggregate demand after full employment increases, the only change in this diagram is a change in the price level, because quantity supplied does not change and demand is increased. More people are demanding the previous level of production. So we can say that the only effect is the prices are inflated, inflation बढ़ जाएगी. यहाँ तक हमने किया था. तो उसके बाद हमने कंक्लूड करने के बाद हमने यहाँ पर अब चैप्टर 4 की तरफ आ रहे हैं, और ये चैप्टर जो है वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, सॉरी. सो वी कैन से दैट अब हमें इसकी तरफ थोड़ा आना है. अगर तो हमें देखना होगा कि क्लासिकल के मुताबिक इंटरेस्ट रेट होता क्या है. सो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन इंटरेस्ट रेट का हम लेते हैं. तो बहुत से इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट ने इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन जो है वो जिस तरह की है, इंटरेस्ट रेट्स आर द प्राइसेस ऑफ द इंटरेस्ट रेट रेट्स आर द प्राइसेस ऑफ द मनी. ये किसने कहा था? एडम स्मिथ. सो एडम स्मिथ के मुताबिक इंटरेस्ट रेट जो है वो मनी की कीमत है. फिर हम आगे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ बोरोइंग मनी, नॉट द प्राइस ऑफ मनी, रादर द बोरोइंग मनी की प्राइस है, यानी जब आप मनी को उधार लेते हैं तो उसकी कीमत है. इसी तरह अल्फ्रेड मार्शल ने भी कहा था
इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फॉर द लोनेबल फंड्स। ये जो टर्मिनोलॉजी यूज की है एल्फ्रेड मार्शल ने। सो जीन बेप्टाइज सीए के मुताबिक, जो क्लासिकल है बहुत बड़ा, इंटरेस्ट रेट इज कंपनसेशन फॉर द यूज ऑफ कैपिटल। अगर आप किसी का कैपिटल यूज करते हैं तो उस कैपिटल को होल्ड करते हैं आप, उसकी कंपनसेशन है। ठीक है। बॉम्बेवर्क के मुताबिक द नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिन्ड बाय द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। और अब कुछ और इम्पोर्टेंट जो वेरिए मतलब इकोनॉमिस्ट हैं, उनके मुताबिक भी इंटरेस्ट रेट जो है वो शुड बी adjusted to maintain price stability। यानी मिल्टन फ्रीडमैन के मुताबिक जो है वो प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इंटरेस्ट रेट पार्ट प्ले करता है, उसे एडजस्ट करना पड़ता है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करते हैं क्योंकि ये मॉनेटरिस्ट था। फिर इसी तरह बर्नानके, बेन बर्नानके जो है वो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। उसके मुताबिक लो इंटरेस्ट रेट्स आर स्टिमुलस टू इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। और आखिरी जो कोटेशन मैं बयान करना चाहती हूँ कि हाई इंटरेस्ट रेट्स आर पेनल्टी ऑन प्रोडक्टिविटी। यानी हाई इंटरेस्ट जो है, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी जो है उसके ऊपर पेनल्टी है, क्योंकि आप प्रोडक्टिविटी हासिल करते हैं किसी की कैपिटल की वजह से, तो हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो है वो ज्यादा आती है। ये एलन ग्रीन स्पैन ने कहा। तो इतने सारे इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन के बाद हम आगे चलते हैं कि क्लासिकल्स के मुताबिक इंटरेस्ट रेट क्या है और इसको उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है और फिर उसको जो है वो डिटरमिन कैसे करते हैं। लेट्स मूव अहेड। तो क्लासिकल के मुताबिक क्वेश्चन एक हम रेज करते हैं, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। अब जो इंटरेस्ट रेट की हमने इतनी बातें की हैं, इनको डिटर्मिनेशन करने की मैकेनिज्म क्या है, यानी क्या सिस्टम है, कौन से ऐसे हालात हैं जो इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन करते हैं। तो इसका जवाब भी मैंने साथ दिया हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। ये जो एग्रीगेट के कंपोनेंट्स हैं क्लासिकल सिस्टम के अंदर, द कंपोनेंट्स ऑफ एग्री डिमांड क्या हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। Yani C plus I plus G, if we are excluding the foreign sector, play their explicit role in determining the interest rate। यानी किसी मुल्क में कंजम्पशन का पैटर्न क्या है, इन्वेस्टमेंट का क्या है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का क्या है, ये मिलकर जो है वो इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन करते हैं। These are the factors that affect the interest rate। यानी इंटरेस्ट रेट के लेवल को ऊपर या नीचे करने की सलाहियत रखते हैं। In fact, interest rate that guarantee that exogenous changes in the particular component of demand do not affect aggregate demand। वो कहता है हकीकत तो ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है जो कि गारंटी देता है कि इन कंपोनेंट्स में, इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स लाइक सी, आई और जी के अंदर, ये गारंटी देता है कि इनके अंदर जो एक्सोजिनस चेंजेस आती हैं, यानी वो चेंजेस जो हैं आउट ऑफ द सिस्टम आती हैं, आप खुद नहीं लेके आते, डिमांड डू नॉट अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड। तो ये जो एक्सोजिनस चेंजेस आती हैं डू नॉट अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट नहीं करते। तो क्लासिकल जो एग्रीगेट डिमांड के बिल्कुल खिलाफ है, कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का कोई रोल ही नहीं होता। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट में जो इंटरेस्ट रेट है ये गारंटी देता है कि इन कंपोनेंट्स के अंदर, यानी सी, आई और जी के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो डू नॉट अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट नहीं करती। द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट्स इन द क्लासिकल सिस्टम वाज अ रेट। अब वो कहता है कि एक इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट हर मार्केट में होता है, हर मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है, कमोडिटी में भी होता है, आपकी लेबर मार्केट।
इसी तरह मनी मार्केट के अंदर भी, कैपिटल मार्केट के अंदर भी इंटरेस्ट रेट जो है वो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है, ऐसा है एट विच द अमाउंट ऑफ फंड्स इंडिविजुअल डिजायर टू लेंड, यानी वो रकम जो कि अफराद डिजायर टू लेंड and was just equal to amount other desire to borrow, कि यानी वो लोग जो कर्जा देने की जो रकम है वो कर्जा लेने वालों की रकम के बराबर हो जाए, यानी उधार लेने वाले उधार देने वालों की जब क्वांटिटी बराबर हो जाती है तो वहां पर यानी इंटरसेक्ट करता है कर्व, तो हम ये कहते हैं कि वहाँ इंटरेस्ट रेट डेवलप, तो हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है। तो इस बात को आप जरा रख लें, डिजायर्ड लैंड एंड डिजायर्ड टू बोरो क्या है, फंड्स, वो दोनों बराबर होने चाहिए। So for simplicity, we assume that borrowing consists of selling a standard bond. अब सवाल ये पैदा होता है कि बोरोइंग कैसे की जाती है, उधार लिया कैसे जाता है। वो उधार को लेने को मशरूत करता है स्टैंडर्ड बॉन्ड की सेलिंग के ऊपर, यानी स्टैंडर्ड बॉन्ड को आगे वो प्रॉमिस भी वो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड बॉन्ड? अ प्रॉमिस टू पे सर्टेन अमाउंट्स इन द फ्यूचर, कि आपको वो फ्यूचर में कोई सर्टेन अमाउंट्स जो है वो पे करेगा, यानी आपकी इनकम का सोर्स बनेगा। सो हम कह सकते हैं कि बोरोइंग जो है वो एक्चुअली सेलिंग ऑफ बॉन्ड से होती है, यानी आप देखें ना, आप किसी को अगर बॉन्ड सेल करते हैं तो बॉन्ड उस शख्स के पास चला जाएगा, आपको वो पैसा दे देगा, यानी आपको बॉन्ड के बदले में उधार दे देगा, और वो बॉन्ड जो है वो एक प्रॉमिस होता है कि इसको मुस्तकबिल में इस बॉन्ड पर कोई इनकम हासिल होगी। अब लैंडिंग क्या है? लैंडिंग कंसिस्ट ऑफ बाइंग सच बॉन्ड, वो ही बॉन्ड जब आप फरोख्त करते हैं तो उस वक्त वो क्या होता है कि वो किसी बंदे के पास आता है। अब वो बंदा जो आपको आपसे बॉन्ड ले रहा है वो कहता है बायर ऑफ बॉन्ड्स। तो लैंडिंग जो है वो बायर जो है ना बॉन्ड का, वो लैंडिंग करता है थ्रू बाइंग द बॉन्ड्स, यानी आप बॉन्ड को खरीद रहा है ना, एक्चुअली वो आपको लैंडिंग कर रहा है। Later we consider the properties of bonds in more detail, but for now the simplest assumption is that the standard bond, now अब इसी को explain कर रहा, is perpetuity। perpetuity perpetual से निकला है, इसका मतलब है दायमी, मुसलसल, तसलसल या uninterrupted। अब बॉन्ड अब परपेचुटी का एक नाम है और ये टर्मिनोलॉजी है कि वो होती क्या है, उसको अब कहता है, पहले तो बॉन्ड को कहता है कि वो जो एक प्रॉमिस है जो कि करता है कि फ्यूचर में पे देगा। परपेचुटी क्या है? परपेचुटी अ बॉन्ड दैट पेज अ परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट, यानी ऐसा बॉन्ड जो है वो एक ऐसा यानी कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट है दैट पेज अ परपेचुअल स्ट्रीम, जो आपको मुसलसल, जैसे एक नदी चलती रहती है ना उसमें रवानी होती है, आपको मुसलसल तसलसल के साथ इंटरेस्ट पेमेंट करता है विद नो रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के ऊपर आपको कोई रिटर्न नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्चुअली क्लासिकल्स बात कर रहे हैं बोरोइंग एंड लैंडिंग की, तो बोरोइंग जो है वो बॉन्ड को बेचने से करता है, बेच कर करता है, और लैंडिंग जो है वो बॉन्ड को खरीदने से होता है। तो इसका मतलब बॉन्ड्स की बाइंग और सेलिंग जहां बराबर होगी वहां इंटरेस्ट रेट डिटरमिन हो जाएगा। The rate of interest measures the return on holding bonds and equivalently the cost of borrowing। तो अब क्लासिकल के मुताबिक जो है वो इंटरेस्ट रेट क्या करता है, ये मेजर करता है रिटर्न को, उस जो फायदे को टू होल्डिंग बॉन्ड्स, बॉन्ड को होल्ड करने का जो है वो उस पर आपको आपको कुछ रिटर्न पे कर, मतलब मेरे पास बॉन्ड है तो मुझे बॉन्ड के रखने की के ऊपर जो है वो कुछ मुआवजा जो मिलता है। ठीक है, इक्विवेलेंटली द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, तो इसी को हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कहते हैं। यानी अगर बोरवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसने क्योंकि किसी को बॉन्ड बेच कर पैसे लिए हैं तो इस पैसे को जो रखने की कीमत है, यानी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी उधार लेने की कीमत है, लागत है। द इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द लेवल ऑफ बॉन्ड सप्लाई
तो इंटरेस्ट रेट जो डिपेंड करता है उन फैक्टर के ऊपर, कि किन फैक्टर्स के ऊपर, दैट डिटरमिन द लेवल ऑफ बॉन्ड सप्लाई, यानी जो बॉन्ड की सप्लाई को डिटरमिन करते हैं, दूसरी सूरत में से बोरोइंग कहते हैं, एंड बॉन्ड्स डिमांड यानी लेंडर। तो सब पता चला इंटरेस्ट रेट उन फैक्टर, उन अवामल पर डिपेंड करता है जो कि बॉन्ड की सप्लाई और बॉन्ड की डिमांड को जो है वो डिटरमिन करते हैं। ठीक है। सो इन द क्लासिकल सिस्टम द सप्लायर्स ऑफ बॉन्ड्स वर द फर्म। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सप्लायर ऑफ बॉन्ड्स होते कौन है। मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि सप्लायर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो दो तरह के इकोनॉमिक एजेंट करते हैं। एक तरफ फर्म्स हैं प्राइवेट, और दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट है। तो क्या है फाइनेंस बाय नंबर वन, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि ये फर्म्स हैं विच फाइनेंस्ड ऑल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द सेल ऑफ बॉन्ड। अब एक फर्म जो है उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फर्ज करो उनके पास पैसे नहीं है, तो अपने तमाम जो एक्सपेंडिचर हैं इन्वेस्टमेंट के, उसको वो फाइनेंस करते हैं बॉन्ड को सेलिंग करने के बाद। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक जरिया है बॉन्ड्स जो है वो सेलिंग करने का, ये हमारे पास फर्म्स है। एंड गवर्नमेंट विच माइट सेल बॉन्ड्स टू फाइनेंस स्पेंडिंग इन एक्सेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट दूसरे नंबर पे आती है, गवर्नमेंट विच माइट सेल बॉन्ड्स, जो कि बॉन्ड्स को बेच सकती है, किस लिए, ताकि वो फाइनेंस कर सके अपनी स्पेंडिंग को इन एक्सेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू, जाहिर है कि गवर्नमेंट के बहुत से रेवेन्यू के जराए हैं, जिनमें सबसे पहला जरिया, जो बड़ा जरिया, जो मेन जरिया, या आप कह सकते हैं प्राइम उसका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो टैक्सेशन है। जब टैक्सेशन से बात नहीं बनती तो फिर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि वो कर्जे लेती है अंदरूनी सोर्सेज से और बैरूनी सोर्सेज से। तो अंदरूनी सोर्सेज में अगर फर्ज करें कि गवर्नमेंट के पास अब प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगाने के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट फिर बॉन्ड सेल करती है, और उसके बदले में जो है वो पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाता है। सो देर आर टू sources of bond selling, और there are two economic units, क्या कह सकते हैं, हमारे जो एजेंट हैं, एक फर्म्स है और दूसरे गवर्नमेंट है, जो बॉन्ड सेल करके अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं या अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करते हैं। व्हाट आर एक्सोजिनस पॉलिसी वेरिएबल्स। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एक्सोजिनस पॉलिसी वेरिएबल्स कौन से हैं, यानी पॉलिसी के वो वेरिएबल्स जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग आपको अफेक्ट करते हैं। तो इसका जवाब भी है द लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, एक्सेस ऑफ स्पेंडिंग ओवर रेवेन्यू। यानी जब गवर्नमेंट की एक्सोजिनस पॉलिसी वेरिएबल, जब गवर्नमेंट के जो बजट है वो डेफिसिट हो जाता है, यानी कि उसके एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से बढ़ जाते हैं, एज वेल एज पोर्शन ऑफ द डेफिसिट। इसी तरह डेफिसिट का कोई एक पोर्शन द गवर्नमेंट माइट चूज टू फाइनेंस बाय सेलिंग बॉन्ड्स। अब वो डेफिसिट जो हुआ है उस खसारे को पूरा करने के लिए जहाँ बहुत से जराए हैं, उनमें एक जरिया ये है कि अगर गवर्नमेंट उस खसारे को फाइनेंस करने के लिए बॉन्ड्स को सेल करती है, बेचती है टू द पब्लिक, लोगों को, आर एक्सोजिनस पॉलिसी वेरिएबल्स, तो ये पॉलिसी वेरिएबल से बाहर आता है। तो हमने कहा है कि गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है, actually this is called the government revenue and government expenditure policy। और गवर्नमेंट की जो मेन पॉलिसी वेरिएबल हैं वो आपकी टैक्सेशन है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है। अगर गवर्नमेंट के टैक्सेशन जो है से रेवेन्यू शॉर्ट फॉल हो जाए ऑफ द एक्सपेंडिचर, तो फिर गवर्नमेंट के एक्सोजिनस पॉलिसी वेरिएबल्स में अगर गवर्नमेंट उस फाइनेंस करती है आउट ऑफ द, यानी इसके अलावा, यानी हम कह सकते हैं कि टैक्सेशन के अलावा जो गवर्नमेंट अपने बजट में फाइनेंस करती है, वो एक्सोजिनस पॉलिसी वेरिएबल सेलिंग ऑफ। सो सेलिंग बॉन्ड is the exogenous policy variable because गवर्नमेंट शुरू में नहीं कहती कि हमने शुरू ही यहाँ से करना, मजबूरन हम जब पॉलिसी से हट कर कोई काम करते हैं
तो ये हमारे पास एक्सोजिनस पॉलिसी वेरिएबल यानी पॉलिसी से बाहर है। इन द क्लासिकल मॉडल द लेवल ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट वाज अ फंक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट में क्लासिकल मॉडल में अगर जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है was a function वो डिपेंड करता है ऑन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। वो डिपेंड करता है, आपने इन्वेस्टमेंट का जब फैसला करना है तो आप देखते हैं मुतवक्को आमदनी उस प्रोजेक्ट से आपको कितनी हासिल होती है डिफरेंट प्रोजेक्ट से। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाता है एक बंदा और फिर उसको देखता है, उसका एक मतलब रूप रेट बनाता है, यानी एस्टिमेट करता है कि फलां प्रोजेक्ट से मुझे इतना होगा, फलां प्रोजेक्ट मिल गया तो इतना पैसे मिलेंगे, इतना प्रॉफिट मिलेगा फलां पे। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। और दूसरी तरफ वो देखता है इंटरेस्ट रेट को। तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले दोनों को देखने के बाद कंपैरिजन करता है कि अगर वो प्रोजेक्ट में लगाए तो वहां से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है, और अगर इंटरेस्ट रेट पे लगाए, इंटरेस्ट रेट हासिल करे पैसे को बैंक में रख के या बॉन्ड को खरीद कर, तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलता है। The expected profitability of investment project was assumed to vary with expectation of the product demand over the life of these projects. So expected जो profitability है investment projects की, उसको फर्ज किया गया है कि ये वेरी करती है, यानी फ्रॉम टाइम टू टाइम ये चेंज हो जाएंगी विद एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट डिमांड। कि हम जो हम फोरकास्ट करते हैं कि मुस्तकबिल में डिमांड कितनी कितनी होगी ओवर द लाइफ ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट ये जो हमने आज लगाने का सोच रहे हैं, तो मुस्तकबिल में डिमांड के चेंज होने से हम फोरकास्ट करते हैं कि ये हमें कितना कितना जो है वैसे पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट देगी। अब देखिए, हमने फर्स्ट को कहा जी 10 साल है, 15 साल है, तो 15 साल पहले तक के भी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें 15 साल में कितना प्रॉफिट देगा, 10 साल में कितना देगा। एंड द स्टेट ऑफ दीज एक्सपेक्टेशन वाज सब्जेक्ट टू एक्सोजिनस शेयर। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, इसमें जो चेंज आती है इसमें हमारा अख्तियार नहीं है। ये इकोनॉमी की जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, सोशियो इकोनॉमिक जो है वो इंडिकेटर्स पे डिपेंड करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, इंटरनेशनल अरीना के अंदर आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। सो दीज आर एक्सोजिनस शिफ्ट होती हैं जिसकी वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो चेंज होंगी। जब एक्सपेक्टेशन चेंज होगी तो उसकी आप कहेंगे उसकी डिमांड भी चेंज होगी। अब हम सोचेंगे डिमांड चेंज है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी चेंज होगी। सो वी कैन से कि इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने से पहले वो दो चीज़ों को देखता है। एक इंटरेस्ट रेट को अगर वो अपना बैंक में रख दे या बॉन्ड खरीद ले, और दूसरा प्रोजेक्ट को जो है वो अगर खुद इनिशिएट करे किसी एक प्रोजेक्ट को, तो फिर अगर तो उसे प्रोजेक्ट से हाई प्रॉफिटेबिलिटी हो तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा हो, तो वो फैसला जो है वो इन्वेस्टमेंट करने पे लगा देगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा है तो प्रोजेक्ट आपको लो दे रहा है आपकी सोचों में, आपकी एक्सपेक्टेशन में, तो फिर आप फैसला जो है यही करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए मौजू नहीं है माहौल, तो हम जो है वो क्या करें, इस पे इंटरेस्ट कमा सकते हैं बॉन्ड सेलिंग, बॉन्ड जो परचेज करके। सो इन दिस वे डिसीजन आर मेड ऑन द कंपैरिजन। सो इंटरेस्ट रेट इज वन ऑफ द main indicator which shows the path towards initiating investment. For a given expected profitability, investment expenditure varied inversely with the interest rate. तो वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट रेट के साथ वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। क्लासिकल इकोनॉमी एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप एज फॉलोज। क्या कहते हैं? A firm would have a number of possible investment projects offering various expected returns. It would rank these projects in order of the level of expected profit. यानी फर्म्स जो हैं उसके जब वो कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करती है तो उसके सामने सिर्फ एक ही फोकस नहीं होता, एक प्रोजेक्ट, उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को वो सामने रखते हैं। मसलन वो कहे जी एक मैं कोई कपड़े का टेक्सटाइल मिल लगा लेता हूँ, फर्ज करके जी मैं शुगर मिल लगा सकता हूँ
या वो कहे जी मैं मोटरसाइकिल बनाने की फर्म लगा सकता हूँ, मैं टीवी बनाने की फर्म बना सकता हूँ। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर द फर्म्स कि वो उसको डिफरेंट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दे रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर वो उनको रैंक कर लेता है। रैंक मतलब नंबर 1 पे प्रॉफिटेबिलिटी, नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे। सो ही हैज डिफरेंट प्लान्स ए बी सी एंड डी मे बी अप टू एन। तो इन प्रोजेक्ट की बहुत होस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर से उसे डिसीजन करना पड़ता है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपकी डिमांड से सपोर्ट हो रहा है, यानी जिस पे डिमांड ज्यादा होगी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इट कुड, फिर वो रैंक कर लेता है उसमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हाई है उसे ऑप्ट करता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स टू फाइनेंस दीज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। अब जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स। अब इस इन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा वो उधार लेगा, उधार लेने पर इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट जो है वो इस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। सो इट मीन्स कि आपने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं। तो हम ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी कि उधार लेने की कीमत है। क्योंकि आपने उधार लिया है तो आपको अल्लाह वास्ते तो कोई भी नहीं देगा, तो आपको उसके ऊपर कीमत आप करनी पड़ेगी। क्योंकि जिसने भी आपको उधार दिया वो खुद महरूम हो जाएगा उस पैसे को यूटिलाइज करने से। अब जब आप दे देते हैं तो बाज़ दफा आपके ज़हन में ख्याल आता है कि मैं खुद कर लूं, तो लेकिन उस वक्त आप मजबूर होते हैं क्योंकि आपने पैसा जो अपना किसी को दे दिया है। सो आप उस पैसे की कीमत, उसी पैसे की वजह से तो बिजनेस होगा। तो जब वो खुद प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको शेयर करेगा इन द फॉर्म ऑफ making payment for the borrowing of funds. At high interest rate, fewer projects will be profitable. हाई इंटरेस्ट रेट होगा अगर आपने फर्स्ट करो, अगर आप एक फर्म है, आपने कर्जा लिया हुआ है, तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यानी इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। इसलिए फ्यू एवर प्रोजेक्ट्स विल बी प्रॉफिटेबल। तो प्रॉफिटेबल इतना नहीं होंगे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अब आप बहुत सारा पैसा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के लिहाज से पे कर रहे हैं। नेट नेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो नेट ऑफ इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि आप का जो है वो इंटरेस्ट रेट पे करने के बाद आपको जो कुछ बचता है, नेट ऑफ इंटरेस्ट रेट मतलब है कॉस्ट ऑफ बोरिंग पे करने के बाद आपका प्रॉफिट, आपका जो प्रोजेक्ट है आपको कोई इतना खास फायदा नहीं दे रहा, तो इसलिए रिटर्न नहीं दे रहा, तो इसलिए फिर आप जो है वो क्या उसे कहते हैं कि आप फैसला हो सकता है कि प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने में ना करें हक में। एट सक्सेसिवली लोअर इंटरेस्ट रेट, जिसे हम लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, तो आज से आप याद रखें कि क्लासिकल के मुताबिक जो इंटरेस्ट रेट है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, तो जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा होती है तो आप प्रोजेक्ट को इनिशिएट नहीं करते या कम करते हैं। एंड मोर प्रोजेक्ट्स विल बिकम प्रॉफिटेबल। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि अब आपको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ी देनी पड़ती है, नेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, तो यानी इंटरेस्ट निकालने के बाद आपका प्रॉफिटेबल होगा। इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट का इन्वेस्टमेंट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी lower the interest rate, lower the cost of borrowing, and higher will be the investment. We'll look at investment in more detail later, but obtain the same general result. हम आगे देखते हैं, ठीक है, इसको डिटेल्स के अंदर। इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स इन्वर्सली, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। दस ऑन द सप्लाई बोरोइंग साइड हम लेते हैं ऑफ द बॉन्ड मार्केट, द गवर्नमेंट बॉन्ड सप्लाईज एक्सोजिनस। अगर हम सप्लाई साइड पे जाएं, जो जैसे कि हमने कहा था, सप्लाई जो है वो इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स भी देते हैं, और सप्लाई जो है वो साथ साथ जो है वो क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी देती है। तो क्या होगा कि जब हम सप्लाई साइड पे आएंगे, द साइड ऑफ द बॉन्ड मार्केट की जो सप्लाई साइड पे जाएंगे, द गवर्नमेंट बॉन्ड सप्लाई इज एक्सोजिनस। गवर्नमेंट की जो बॉन्ड की सप्लाई है वो एक्सोजिनस है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है। एंड द
बिजनेस सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स इक्वल्स द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड साइड ऑफ मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड सप्लाईज ऑफ एक्सोजेनस एंड द बिजनेस सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स इक्वल्स द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और और जो बिजनेस सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स करती है वो इक्वल होती है द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करनी है तो उसी के सब इक्वल द जितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर किसी ने करना है तो बिजनेस की जो है वो सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स उतनी ज्यादा होगी। अगर मैंने फर्स्ट करें बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे इन्वेस्टमेंट फर्स्ट करें बढ़ती है तो सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी नहीं, सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो एक्सोजिनस है, वो के इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग है, उसके उसको हालात मुतासर नहीं करते बल्कि वो हालात को मुतासर करती है। इन्वेस्टमेंट वेरीज इनवर्सली विद द इंटरेस्ट रेट and is also influenced by exogenous shift in the expected profitability of investment. So हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो तल्लक इंटरेस्ट रेट के साथ है वो इसके साथ इन्वर्सली वेरी करती है। हायर द इंटरेस्ट रेट लोअर विल बी इन्वेस्टमेंट, लोअर द इंटरेस्ट रेट एंड हायर विल बी इन्वेस्टमेंट। एंड इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट एक तरफ तो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड कर रही है और इन्फ्लुएंस्ड हो रही है, दूसरी तरफ से इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सोजेनस शिफ्ट इन द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है उनके अंदर एक्सोजेनस शिफ्ट आते हैं, यानी कि उनके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि खुद ब खुद ड्यू टू अदर फैक्टर्स जब चेंज आती है प्रॉफिटेबिलिटी में, जैसे मैंने कहा कि कि हम कह सकते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो ये एक्सोजेनस शिफ्ट है ना। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि कोई फर्ज कोरोना आ गया, उससे इन्वेस्टमेंट एक्सोजेनसली डिटरमिन होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि ये वो चीजें हैं एक्सोजिनस जो आपके अख्तियार से बाहर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट के साथ उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। लेकिन जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है इसमें पॉजिटिव चेंज भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, इसके बारे में हम तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जब तक के वो चेंजेस शिफ्ट नहीं होती। सो ऑन द डिमांड यानी लैंडिंग साइड ऑफ द बॉन्ड मार्केट आर द इंडिविजुअल सेवर्स। अब आप जरा थोड़ा और हम डेप्थ में चले जाते हैं कि डिमांड यानी लैंडिंग साइड ऑफ द बॉन्ड मार्केट में जो डिमांड करते हैं बॉन्ड्स आर द इंडिविजुअल। हम जो बॉन्ड के सप्लायर्स तो गवर्नमेंट और फार्मेसी, तो गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स की जो डिमांड कौन करता है, मैं और आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल सेवर्स डिमांड करते हैं हु परचेज द बॉन्ड, जो कि बॉन्ड को परचेज है। सो परचेजर्स ऑफ द bonds bring the demand for the bonds, सही, ठीक है। In the classical model, saving was taken to be a positive function of the interest rate। क्लासिकल के मुताबिक सेविंग जो है वो पॉजिटिव फंक्शन है ऑफ इंटरेस्ट रेट का, यानी जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड के ऊपर तो आप सेविंग ज्यादा करेंगे क्योंकि अब आपको इसके ऊपर जो है वो ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। So whereas investment is the inverse function of interest rate, saving is the positive function of interest rate, दोनों में फर्क है, यानी उधर नेगेटिव रिलेशनशिप है इधर पॉजिटिव है। The act of saving is the act of foregoing current consumption to have a command over goods in a future period। आपकी जब आप सेव करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं उस वक्त, आप जो है वो आप उस वक्त फोरगो कर रहे होते हैं, अपनी करंट कंजम्पशन की कुर्बानी दे रहे होते हैं कि ताकि फ्यूचर में जो है वो कमांड आपकी बढ़ जाए गुड्स एंड सर्विसेज पर। वो कैसे कैसे बढ़ेगी कि आप जब उसको कर्ज दे देंगे तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और इंटरेस्ट रेट और आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है दोनों जमा होकर फ्यूचर में आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप आपके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आप क्या करते हैं अपने सुनहरी मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के सुनहरी मुस्तकबिल के लिए आप अपने मौजूदा जो हालात हैं उनको तारीख कर देते हैं, यानी कुर्बानी दे रहे होते हैं। ट्रेड ऑफ करंट कंजम्पशन फॉर फ्यूचर कंजम्पशन।
इसको उन्होंने टर्मिनोलॉजी दी है कि जब आप एक खर्चे को कम करके दूसरे प्रेजेंट खर्चे को कम करके फ्यूचर के खर्चे को बढ़ाना चाहते हैं या कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब आप ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। जितनी आप कुर्बानी देते जाएंगे उतना आपकी बेसिक में इनकम बढ़ती जाएगी। As the interest increases, the term of the trade-off between become more favorable. जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, टर्म्स ऑफ द ट्रेड ऑफ बिकम मोर फेवरेबल। तो एक इंडिविजुअल के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ है, ट्रेड नहीं है। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि कुर्बानी देने का जज्बा बढ़ता जाएगा। अ डॉलर सेव टुडे विल अर्न अ हायर इंटरेस्ट रेट फॉर द सेवर। आज अगर वो सेव करेगा तो उसको वो हायर इंटरेस्ट रेट देगा। ग्रेटर कमांड ओवर कंजम्पशन गुड्स इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में वो अमीर हो जाएगा और उसको वो ज्यादा चीजें खरीद सकेगा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट assumed the individual would take advantage of the more favorable trade off। क्लासिकल के मुताबिक इंडिविजुअल जो है वो मोर फेवरेबल ट्रेड ऑफ को वो क्या करता है, उसका फायदा उठाएगा। दे वुड सेव मोर एट हायर इंटरेस्ट रेट। तो उनके लिए जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट पे वो ज्यादा सेव करेगा और वो बड़े हुए इंटरेस्ट रेट से फायदा उठाएगा। सो बट सेविंग नीड नॉट गो इन बॉन्ड्स। वाई? क्वेश्चन ये है कि सेविंग को बॉन्ड्स के अंदर नहीं जाना है, यानी सेविंग को जरूरत नहीं है कि उससे हम बॉन्ड्स ही खरीदें। वाई? बिकॉज मनी इज ऑल्सो अ पोटेंशियल स्टोर ऑफ वेल्थ। अब आपके पास दो तरह की वेल्थ है, एक बॉन्ड्स और दूसरा आपके पास कैश की शक्ल में पैसा है। जो पैसा आपका है, जो आपकी मनी है, वो कैश में वो आपकी जो है वो स्टोर ऑफ वेल्थ है। वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि सारे आप पैसे जो है वो बॉन्ड्स ही खरीद लें, बल्कि आप मनी भी अपने पास रख सकते हैं कि ये भी तो वेल्थ है ना। देखिए ना, मनी जो आपके पास है, इन कैश इन हैंड है, उसकी तो अपनी ही मौजें हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि मनी इज व्हाट मनी डज, बट मनी इज व्हाट इज इन योर पॉकेट। तो आपको इसके इंस्टेंट फायदा उसी वक्त होता है जब आपके पास कैश इन हैंड हो। तो मसलन छोटी छोटी चीजें आप लेते हैं, मसलन फर्ज करें मैंने टूथब्रश लिया है, या मैंने हलवाई की दुकान से मिठाई ली है, या मैंने दूध लिया है कहीं से। छोटी छोटी चीजें हैं, उसके लिए आप ना तो एटीएम कार्ड और ना आप जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। आप छोटी छोटी चीजें, पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ ना, यहाँ तो लोग ठेले लगा के बैठे हैं, तो एटीएम कार्ड हर जगह यूज नहीं हो सकता। तो आपके पास जो पैसा पैसा है वो भी तो आपकी वेल्थ है ना, आप जब चाहे उसे इस्तेमाल करके उसके बदले में चीजें ले सकते हैं। So there are there are two types of wealth. One, according to classical, one is the bond and the other is money. Why money should be kept in bond? Because there is another wealth, which wealth, other wealth है, वो है मनी। आप उसे अपने पास में रख सकते हैं। बिकॉज मनी पेड नो इंटरेस्ट रेट। अब वो बात साथ ही सवाल करता है, साथ जवाब। वो कहता है कि क्योंकि मनी आपको इंटरेस्ट पे नहीं करते, इसलिए ये मनी क्या है, आइडल मनी है। ऐसी मनी जो बिल्कुल बेकार पड़ी है अपना। बल्कि आप देखें कि आज के दौर में तो अगर हम देखें क्लासिकल का तो नहीं, कि जैसे मनी आपके पास आइडल पड़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। मैं क्लासिकल की बात नहीं कर रही। तो आप ये देखें कि मनी जो है वो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करती। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट assume that bonds would be preferred as a store of wealth। सवाल का जवाब भी दिया है क्लासिकल ने कि क्योंकि दो तरह की वेल्थ है, तो आप को जो है वो मनी जो है वो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देती, इंसेंटिव नहीं है, आप फजूल पैसा नहीं रखेंगे। बल्कि वो क्या करेंगे कि जब मनी आपके पास बेकार पड़ी है तो यू विल ट्राई टू चैनलाइज दिस मनी टू बाय द बॉन्ड्स, सो दैट बॉन्ड्स आपको जो है वो आपको जो है वो इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, between the two assets, that is money and you say bonds, they will prefer bonds because bond will give him the interest, or money will give no interest. So the idle money is not preferred by the classical. Some money would be held for the। अब वो बताते हैं कि हाँ, कुछ पैसा तो आपको रखना ही पड़ेगा हर सूरत में। वो क्लासिकल कहते हैं कि बॉन्ड जो है वो तब खरीदेगा जब ये दो चीजें जो है उनके लिए पैसा वो रखेगा। कि पैसे को वो अपने पास रखना चाहेगा दो
पर्पस की वजह से। एक है कन्वीनियंस और दूसरा है सिक्योरिटी। अब वो हाउ वेल्थ, अब हमें कन्वीनियंस क्या है? आप देखें ना, आप अपने पैसे को कैश में आप अपने पेरेंट्स को पूछें या अगर आप खुद खर्चा चला रहे हैं तो आप देखेंगे कि पैसा कन्वीनियंस के लिए रखता है, यानी आपके रोजमर्रा के मामूलात के जिंदगी में आपको खरीदो फरोख्त करनी पड़ती है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। मसलन आपको जो है वो ट्रांजैक्शन के लिए पैसा डेली डेली के लिए करना चाहिए। आप कंज्यूमर हैं तो तब आपको जो है वो छोटी छोटी चीजें, मतलब दूध है, चावल है, आटा है, पेस्ट है, और कोई सर्विस लेनी है, बार्बर की लेनी है, या आपने कोई कन्वेंस पे जाना तो आपको पैसे की जरूरत है। और दूसरा ये कि बिजनेस वालों को भी अपने बहुत से लेन देन के लिए पैसा जो है वो नकद शक्ल में रखना पड़ता है, कि जिनसे उधार लिया है वो की डिमांड है कि फलां डेट को आप उधार देना, तो वो पैसा जमा करके अपने पास रखेंगे। सो वी कैन से कन्वीनियंस जो आपकी जिंदगी में आसानी लेके आता है ये पैसा, इसलिए आप पैसा रखते हैं। नंबर टू पे सिक्योरिटी। व्हाई डू पीपल keep money for security? What is security? What is it meant by this? So we can say कि security का मतलब है कि अपने आप को सिक्योर करो फॉर अगेंस्ट द फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी और अर्जेंसी। वो क्या है? फर्ज करे अल्लाह ना करे आप कोई घर में बीमार पड़ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई वबा फैल जाती है, कोई आपके अच्छे अच्छे पहलू को देखें तो कोई मेहमान अचानक आ जाते हैं, तो आप कहाँ से पैसा लाएंगे? तो आप अपना कुछ पैसा जो है वो अपने अनएक्सपेक्टेड जो नीड्स हैं, जिसको आपने फोरकास्ट नहीं किया, वो वाली जो उसको भी आप जो है वो अपने पैसे पैसा रखेंगे। तो उनका मतलब यह है कि पैसा वो वो आपको बॉन्ड्स खरीदने को प्रेफर तो करेंगे, लेकिन वो कुछ पैसा नकद शक्ल में भी रखेंगे, और वो कैसा? कन्वीनियंस और सिक्योरिटी के लिए। However, wealth accumulated through new saving would be held in bonds। वो कहता है कि अब फर्स्ट करो ये दोनों चीजों पे आपका कन्वीनियंस और सिक्योरिटी पे आपका पैसा पूरा हो जाता है, तो फिर आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे आप बॉन्ड्स खरीदने पे लगा लेंगे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट पीपल माइट शिफ्ट देयर वेल्थ इनटू द फॉर्म ऑफ मनी इन टाइम्स ऑफ severe जनरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। अब ये बड़ी अच्छी बात है इन्होंने की कि क्लासिकल बिलीव करते हैं कि अगर अल्लाह ना करे सवियर कोई बहुत से इकोनॉमिक हालात जो है वो डिस्ट्रेस के हों, यानी इकोनॉमिक इकोनॉमी डाउन टर्न की तरफ आ रही हो, ये इकोनॉमी में हालात बुरे चल रहे हों, तो फिर जो है वो अपनी वेल्थ को वो मनी की शक्ल में रखेंगे, वो बॉन्ड्स की शक्ल में नहीं रखेंगे। मतलब फर्ज करें जंग के हालात है, तो जंग के हालात में आपको अपना पैसा जो है वो मनी की सूरत में रखें ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरी कर सकें। और फिर अगर आपने बैंक में रख दिया या बॉन्ड्स में, तो वो पैसा आपके अख्तियार से निकल जाएगा। तो जंग के हालात में सबसे बड़ी प्रेफरेंस फूड होती है, तो आपको फूड और हेल्थ हेल्थ के ऊपर स्पेशली आपको पैसा रखना पड़ता है। सो जंग या बुरे हालात में आपको पैसा अपने पास रखते हैं और बॉन्ड रखने को प्रेफर नहीं करते हैं। यही वजह है कि जैसे कोरोना आया था तो उसमें लोगों ने अपने पास कैश रखा, और बहुत से लोगों को हमने खुद भी ऑब्जर्व किया, और उन्होंने बॉन्ड्स जो है वो खरीदना बंद कर दिए। तो जिसकी वजह से आपकी अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में भी बहुत मंदा चल रहा था तब, क्योंकि लोग जो है वो उन्हें पता है कि इन्वेस्टमेंट अब नीचे जाएगी तो अब प्रॉफिटेबिलिटी या इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, इसलिए वो उसको खरीदना प्रेफर नहीं करते। एट सच टाइम्स व्हेन बैंक्स पैनिक्स एंड बैंक्रप्सीज प्रेवलेंट। तो अगर इन हालात में बैंक पैनिक चल रहे हैं, बैंक में हालात बुरे चल रहे हैं और बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे हैं हालात, पीपल माइट वरी अबाउट बॉन्ड डिफॉल्ट। तो वो कहेंगे बॉन्ड भी डिफॉल्ट हो जाएगा, यानी बॉन्ड भी फेल हो जाएगा। तो एंड होर्ड मनी, तो मनी को क्या करते हैं? होर्डिंग कर लेते। सो तो ये बात ये मैंने रेड कलर में रखी है, तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वैसे तो लोग जो है वो कन्वीनियंस और सिक्योरिटी के बाद जो पैसा है वो बॉन्ड परचेज पे लगाते हैं पीस टाइम में, लेकिन आप जो है वो जब इकोनॉमिक डाउन टर्न चलता है उन हालात में जो है वो क्या करते हैं? वो बॉन्ड्स के ऊपर मनी को प्रेफर करते हैं। तो पीस में वो बॉन्ड को मनी पे प्रेफर करते हैं, और बुरे हालात में वो मनी को बॉन्ड के ऊपर प्रेफर करते हैं, एंड दे होल्ड देयर मनी सो दैट
there should be no panic, bank panics and bankruptcies. But in normal times, the classical assumptions that saving was डिमांड, तो मैंने ये पहले बता दिया है कि नॉर्मल हालात में हालात ये होते हैं कि आप बॉन्ड्स को खरीदें। तो अब हम इसको डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। आप देखें डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इन फिगर 4.3, saving is plotted on the upward sloping function of the interest rate। यहाँ पर हमने सेविंग को जो है वो क्या बताया है कि ये सेविंग जो है वो पॉजिटिव फंक्शन है इंटरेस्ट रेट का। यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ हमने लोनेबल फंड्स की टर्मिनोलॉजी यूज की है। यहाँ पर हमने इंटरेस्ट रेट लिया है, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन इन द क्लासिकल सिस्टम। तो इसको वो बता रहे हैं कि सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स पॉजिटिवली स्लोप्ड है, जो ये बताता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे वैसे सेविंग जो है वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है। और सेविंग प्रोवाइड द डिमांड फॉर बॉन्ड्स। सेविंग जो है वो क्या है, सेव जो मनी की है असल में वो डिमांड फॉर बॉन्ड्स के लिए की है। और एज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कॉल्ड इज द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। इसको हम एक्चुअली ये जो सेविंग है ये बॉन्ड्स की डिमांड भी है और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है, ये एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से बयान किया है। सो इन्वेस्टमेंट इज अ नेगेटिवली स्लो। आप इन्वेस्टमेंट को देखें, ये कर्व इन्वेस्टमेंट का है, ये नेगेटिव है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ये बता रहा है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता जाता है इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है। ये देखिए ना, ये मैं जो एरो लगा कर, सो वी कैन से इन्वेस्टमेंट प्लस द एक्सोजेनस डिटरमिन गवर्नमेंट डेफिसिट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो तो यहाँ डिटरमिन हो जाता है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी जो प्लस द एक्सोजेनसली डिटरमिन गवर्नमेंट डेफिसिट, ये जो कर्व है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये खाली आई है। अब आई में जब हम क्या करते हैं, जमा करते हैं जी माइनस टी, यानी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं उसमें से टैक्स माइनस करते हैं। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं और टैक्स कम है तो पॉजिटिव कोई अमाउंट आएगी और वो आपका आई प्लस जी माइनस टी जो है वो आई से बड़ा ही होगा। एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स है, ये देखिए इन्वेस्टमेंट को हम डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स भी कहते हैं। ये अगर सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है, ये डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स है। तो अगर हम इसको उल्टा कहें तो ये बॉन्ड्स की डिमांड है, ये बॉन्ड्स की सप्लाई है। सो हम क्या कहते हैं कि आपकी जो मुल्क के अंदर, क्योंकि आपका सी आई और जी है, तो यहाँ पर कंजम्पशन तो आमतौर पर फिक्स ही रहती है। तो हमने आई और जी जो है उसको यानी गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स को इसलिए इन्वॉल्व किया है कि जो बॉन्ड्स के जो सप्लायर्स हैं वो बिजनेस क्लास यानी आपकी फर्म्स हैं और गवर्नमेंट है। अंडरस्टैंड। सो इसलिए हमने इसमें सी का तो जिक्र नहीं किया, बल्कि आई प्लस जी माइनस टी। तो इसको बड़े गौर से देखना है कि हमने आई को जी माइनस टी, क्योंकि आप इन्वेस्टर जो प्राइवेट हैं वो तो इन्वेस्टमेंट की अपनी इन्वेस्टमेंट उनकी होगी जितनी उसके लिए पैसा लेंगे, और गवर्नमेंट का एक्सोजिनस जो चेंज आती है यानी कि वो आपके टैक्स जो है वो कम पड़ गए और आपकी जो है वो एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं। तो मैंने पहले भी कहा था गवर्नमेंट अपने बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए वो क्या करेगी, बॉन्ड्स का सहारा लेगी। तो जी माइनस टी के मुताबिक फर्ज करेगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 रुपए हैं और टैक्स जो है वो 80 रुपए हैं। तो आप 20 रुपए कहाँ से लाएंगे, 20 रुपए के आप बॉन्ड्स बेच देंगे। तो ये असल में बॉन्ड्स की रकम, जी माइनस टी इज इक्वल टू बॉन्ड्स जो जारी करने हैं। तो ये आपके पास बड़ी अमाउंट बन जाएगी, जहां पर आपकी आपकी जो है वो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स जो है ये आपकी जो है वो जब आपकी सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स को इंटरएक्ट करेगी तो आपके पास सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस जी माइनस टी। तो जाहिर है ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग का फंक्शन जो है ना इसके बराबर है, तो यहाँ हमने लिख लिया है equals the bond supply. So in classical terminology, this is the demand for loanable funds. In the diagram, R is the equilibrium interest rate, the rate of interest that equates the demand for and supply of loanable funds. तो यहाँ से हम एक definition जो है वो evolve करते हैं। Equilibrium interest rate happens where the demand for loanable funds
इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, जो हम पहले भी बयान कर चुके हैं। The interest rate plays a stabilizing role in the classical system। मैंने पहले भी कहा है कि इंटरेस्ट रेट एक बहुत, मैंने रेड कलर का लिखा, इसका मतलब आप इसको बॉक्स पे लिखें, जब नोट्स बनाएंगे तो अंडरलाइन भी करें और या इसे बड़ा बड़ा लिखें, ये मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड किया है। जो इंटरेस्ट रेट एक एक ऐसा रोल प्ले करता है क्लासिकल सिस्टम में, आपको पता है कि ये क्लासिकल सिस्टम सारे का सारा जो है वो हमारे पास कैपिटलिज्म पे चल रहा है। कैपिटलिज्म की जान जो है वो इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट आपकी पूरे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के अंदर प्रिवेल कर रहा होता है। सो दैट इज वाई वो कहता है कि ये स्टेबलाइजिंग रोल प्ले करता है, यानी कि ये स्टेबल कर देगा इकोनॉमिक सिस्टम को, एज कैन बी सीन बाय एग्जामिनिंग द फैक्ट ऑफ चेंज इन एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने एग्जामिन किया था कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक्सपेक्टेड चेंज होगी तो उसकी वजह से आप एक्सपेक्टेशन का डिसीजन जो है वो मुतासर हो सकता है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट जो है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है आपके इकोनॉमिक सिस्टम में। देखते हैं, रिकॉल दैट इन द शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। इस शॉर्ट पीरियड में तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी मुतासर कर रही है। आप क्या करें, लेट्स सपोज दैट अ रिजल्ट ऑफ एक्सोजिनस इवेंट। अब वो कहता है कि जो चेंजेस आती हैं वो एक्सोजिनस आती हैं, यानी अनएक्सपेक्टेड आती हैं, लाइक फियर ऑफ फ्यूचर वार। फर्ज करें हम कहें कि फ्यूचर में वार होने का खतरा है। बिजनेस मैनेजर्स इन जनरल लोअर देयर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट। तो अभी जंग के आसार नमूदार हो रहे हैं, खतरे मंडला रहे हैं, तो फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाएंगी फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। वो समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट जंग के हालात में इन्वेस्टमेंट करना कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। द इफेक्ट्स वुड बी रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो नतीजा क्या होगा, मैंने रेड कलर का लिखा है कि इकोनॉमिक डाउन टर्न स्टार्ट होगा और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट का लेवल नीचे आ जाएगा। एंड हैंस रिड्यूस डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। तो फिर आप लोनेबल फंड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी एट ईच इंटरेस्ट रेट। हर इंटरेस्ट रेट पर लोनेबल फंड्स की डिमांड कम हो जाएगी। So let's see. This is autonomous decline in investment। अब हम इसको बड़ा केयरफुली इसको देखना है। ये इलस्ट्रेट द इफेक्ट्स ऑफ ऑटोनमस डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, के इन्वेस्टमेंट में जो है वो खुद ब खुद चेंज आती है। फर्ज करो, फॉर सिंपलिसिटी वी अज्यूम दैट गवर्नमेंट बजट इज बैलेंस्ड। कि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का बजट बैलेंस है, यानी जी इज इक्वल टू टी का मतलब है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसके टैक्स रेवेन्यू के बराबर है। बैलेंस बजट इज व्हेन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू द रेवेन्यू। तो हम कहते हैं रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन, हम कहते हैं कि बजट बैलेंस है। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, यहाँ मैं बताती जाऊँ, आर ग्रेटर देन द टैक्स रेवेन्यू, तो हम कहते हैं कि बजट डेफिसिट है। अगर हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर लेस देन द टैक्सेशन रेवेन्यू, तो हम कहेंगे कि ये आपका जो है वो सरप्लस है बजट। लेकिन ये बात याद रखें बच्चों कि गवर्नमेंट का बजट जो है वो सरप्लस अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब गवर्नमेंट नाहल है, उससे पैसा खर्च नहीं किया। लेकिन अगर आम अफराद का बजट सरप्लस हो जाए तो उसे अच्छा ही समझा जाता है। लेकिन आमतौर पर तरक्की पजीर ममालिक के अंदर तो हमेशा ही शॉर्टेज ऑफ फंड रहती है और मकरूज रहते हैं, जैसे हम IMF के मकरूज रहते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रेयर सिचुएशन है कि फर्ज करें कि बैलेंस्ड बजट है। So there is no government borrowing. Investment is the only source of demand for loanable funds। तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की कोई बोरोइंग नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई उधार नहीं लेना। इन्वेस्टमेंट इज द ओनली सोर्स ऑफ द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। तो हमारे पास, क्योंकि पीछे हमने कहा था ना कि हमारे पास I+G-T है, तो फिर G-T का एलिमेंट खत्म हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट तो लोन ले नहीं रही। तो इसका मतलब ये है इन्वेस्टमेंट इज द ओनली सोर्स। तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स की द ओनली सोर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट है। The fall in the expected profitability of the investment project is shown। अब फर्ज करें कि फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी में हमें कम
कमी नजर आ रही है, यानी जंग के फर्ज के हालात है। शोन शिफ्ट इन द इन्वेस्टमेंट शेड्यूल डाउनवर्ड, जिसकी वजह से आपकी जब ब्लीक हो जाएंगी, तारीख हो जाएंगे एक्सपेक्टेशन, तो आप फिर पीछे मुड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी आपका इन्वेस्टमेंट का कर्व नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, यहाँ लोनेबल फंड्स है, और यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों लिया गया है। यहाँ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ आपकी सेविंग है, यहाँ इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट हमारे पास फर्ज करें ये आता है। और यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट आपकी ये आई नोट थी जो ओरिजिनल थी, जो आपके पास बताती है कि आपके एस जो है सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ओरिजिनली ये सेविंग का कर्व था और ये आपके पास इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल थी। यहाँ आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो आर नोट है, और यहाँ पर एस नोट आई नोट इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ अब आपने इक्विलिब्रियम पे थे, यहाँ अगर हम ये नोट लगा दें तो बेहतर है। अब क्या हुआ, जंग के हालात खतरे मंडला रहे हैं, तो गवर्नमेंट का तो बजट बैलेंस है, और इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट जो है वो, क्योंकि हालात खराब हैं, कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो बॉन्ड्स की जो है वो आप सेलिंग नहीं करेंगे, या लोनेबल फंड्स जो हैं वो उसकी जो है वो आप डिमांड नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट का कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जहां पर आपके पहले सेविंग के कर्व को इन्वेस्टमेंट का कर्व फर्ज करें, यहाँ पर E1 आप लगा सकते हैं, यहाँ मीट करता है, तो हमारे पास S1 इज इक्वल टू I1 के नई इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के बराबर होगी, और इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि लोनेबल फंड्स या इन्वेस्टमेंट के नीचे गिरने से, जब आप उसके लोनेबल फंड्स की डिमांड नीचे करेंगे तो इन्वेस्ट इंटरेस्ट रेट हमेशा नीचे आ जाता है। At the initial equilibrium interest rate R naught and fall investment, इस तरह मैं बयान कर चुकी हूँ कि fund exceed the demand, so putting downward pressure on the rate of interest. As the rate of interest decline, two adjustment occurs. अब ये जो हमने कहा, जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो एक्चुअली दो तरह के हालात बदलते हैं, दो तरह की एडजस्टमेंट होती है। फर्स्ट, सेविंग डिक्लाइन, मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है, तो सेविंग देखे ना, सेविंग का ये पॉइंट नीचे आया, तो सेविंग डिक्लाइन होगी, ठीक है। कंजम्पशन इंक्रीजेस, तो आपकी जाहिर है कि जब आप आपकी जो इंटरेस्ट है नीचे आता है, तो उसके दो तरह के असरात होते हैं। एक तो ये कि आपकी जो है वो सेविंग कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट पे आप कभी भी सेविंग ज्यादा नहीं कर, तो आपकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी। सो यानी क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो फिर जाहिर है कि आप इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कंजम्पशन बढ़ जाती है। अब देखिए, आपकी जो इनकम होती है उसके दो हिस्से हैं, C+S होता है। अगर आपकी सेविंग बढ़ जाए तो कंजम्पशन कम होती है, कंजम्पशन बढ़ जाए तो सेविंग कम हो जाती है। ये इन दोनों ट्रेड ऑफ होती है। So the amount of the decline in showing and the equal increase in current consumption is given by the distance marked A. तो वो कहता है कि जो कंजम्पशन में इंक्रीज हो जाएगी, तो अमाउंट ऑफ दिस डिक्लाइन इन सेविंग एंड इक्वल इंक्रीज इन करंट, सेविंग के कम होने से सेविंग वाला पैसा कंजम्पशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड गिवन बाय द डिस्टेंस ए, वो डिस्टेंस जो ए से दिया गया, यानी ये हिस्सा जाहिर है आपकी ये वाला, यहाँ से अगर आप ऊपर ले जाए ना, तो यहाँ से ऊपर ले जाएं तो ये वाला हिस्सा जो है वो आपकी सेविंग कम हुई है ना ए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेविंग नीचे आ रही है, ये आपकी क्या हो जाएगी, कंजम्पशन होगी। इसे बड़ा गौर से देखें, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ऊपर गिराया है ना, तो दो हिस्से हो गए हैं, एक ए है बी है। तो एक में आपकी जो है वो कंजम्पशन बढ़ेगी, और दूसरे में आपकी जो है वो सेविंग, एक तो सेविंग आपकी डिक्लाइन हो जाएगी, और वो आपकी जो है वो अ, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक सेविंग का कर्व नीचे क्या तरफ आ रहा है। तो ये वाला हिस्सा जो ट्रायंगल है ये बता रहा है कि इसमें आपकी जो है सेविंग कम हुई है। जो सेविंग कम हुई है वो आप उसका एक हिस्सा कंजम्पशन करना शुरू कर देंगे, बढ़ा देंगे। So second investment is somewhat revived by decline in the interest rate. The interest rate induced increase in investment is measured by the distance B. तो दूसरा फर्क ये पड़ेगा, यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ऊपर गए तो बी और ए और बी हिस्सा ना, तो ये जो बी हिस्सा है वो आपका वो कहता है कि इससे कुछ वो इन्वेस्टमेंट जो कि इंटरेस्ट रेट से इंड्यूस्ड होती है, यानी जब इंटरेस्ट रेट कम होगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो फिर आपका कुछ हिस्सा ये बी के बराबर जो है वो
आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो ये दो चेंजेस आती हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, ये इन्वेस्टमेंट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, यानी नीचे आई थी ना इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट सेविंग का कर्व नीचे को आ रहा है और इन्वेस्टमेंट का कर्व ऊपर को जा रहा है। तो वो कहता है ये वाला हिस्सा ये है कि समवट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी ये इसके बराबर, और ये समवट सेविंग नीचे आएगी, सेविंग वाला हिस्सा कंजम्पशन में चला जाएगा, और इंटरेस्ट रेट के गिरने की वजह से आपकी बी के बराबर इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा। सो बहुत से ऐसे भी बच्चे लोग होते हैं कि वो कह तो इंतजार कर रहे होते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो तो हम कोई सेविंग कोई इन्वेस्टमेंट करें। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हो सकता है वो एडिबल आइटम्स के बारे में हो, खाने पीने की अशिया हो, जो जंग के हालात में भी उनकी ऊपर इन्वेस्टमेंट लोग बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि जंग के हालात में आप बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं करते, लेकिन छोटी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो उनका तल्लक रोजगार के मामूलात से होता है, उनकी प्रोडक्शन से। तो इक्विलिब्रियम इज रेस्टोर्ड इंटरेस्ट रेट R1, तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो तो इंटरेस्ट रेट R1 पे आएगा विद सेविंग अगेन इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। सो नया नया इक्विलिब्रियम ये S1 और I1 है, और इंटरेस्ट रेट R1 है। As an equilibrium, the increase in the consumption, fall in saving, increase in consumption होती है, और का मतलब दूसरे अल्फाज में सेविंग कम होती है, प्लस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट caused by the drop in the interest rate, the distance A plus B। अगर वो कहता है कि ये जो सेविंग के कम होने से ये जो कंजम्पशन बढ़ती है, और इंटरेस्ट रेट के कम होने से ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इसको हम A प्लस बी कहते हैं। So A plus B in figure 4.4 is just equal to the original autonomous decline in investment demand. The distance I in figure 4.4, तो ये जो decline आई थी ये उसके is just equal to the original autonomous decline in investment। तो ये एक्चुअली इतनी डिक्लाइन आई थी इन्वेस्टमेंट में वहां से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक इन्वेस्टमेंट में जो डिक्लाइन आई थी ये एक्चुअली ये प्लस बी के बराबर है। ओरिजिनल टर्म्स डिक्लाइन इन्वेस्टमेंट डिमांड, द डिस्टेंस आई इन फिगर 4.4, तो ये डिस्टेंस आई का ही है। ठीक है। So because of the adjustment of the interest rate, the sum of private sector demand, तो अब जब इंटरेस्ट रेट ने एडजस्टमेंट कर दी है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है सी प्लस आई, हम के आपके पास सी प्लस आई प्लस जी है ना, सी जो है वो प्राइवेट सेक्टर की कंजम्पशन है, आई प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थे। तो आपके ख्याल में सी प्लस आई इज अनअफेक्टेड बाय द ऑटोनमस डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में जो खुद ब खुद चेंज आई थी उसकी वजह से सी प्लस आई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कैसे? कि आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट नीचे आई थी, तो ए प्लस बी के बराबर जो है वो ए प्लस बी के बराबर, ये उसके अंदर ये वाला हिस्सा जो है ना कवर हो जाएगा, कि जितना आपकी इन्वेस्टमेंट कम हुई थी तो सेविंग कम हुई थी, तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी है, लेकिन जितनी सेविंग हुई है ये कंजम्पशन में बदल जाएगी, और इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, तो सी प्लस आई ए प्लस बी के बराबर ही रहेगा। ठीक है। सो द बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट द सम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर सी प्लस आई, तो आई जो है वो अनअफेक्टेड हो गया बाय द एटॉनमस डिक्लाइन। तो मैं ये बार बार बता चुकी हूँ। तो जो आपका एग्रीगेट डिमांड का जो हिस्सा है सी प्लस आई, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। आप सी में बढ़ा दें ये, और इन्वेस्टमेंट जो सेविंग की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हुई थी तो आपकी सेविंग बढ़ी थी, तो कुछ हिस्सा इंटरेस्ट रेट के गिरने की वजह से इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा, और जितना सेविंग में कमी आई थी जो आपकी वो आपकी इन्वेस्ट कंजप्शन में बदल जाएगी। What are the effects of increase in government spending? If for alternatively the government prints money to finance the new spending। अब सवाल पहले तो हमने ये कहा है कि कौन से फाइनेंस करती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो अल्टरनेटिवली ये क्या करेगी, कि हम गवर्नमेंट जो है वो अपने बॉन्ड्स को सेल ना करे बल्कि नए नोट छाप दे, जिसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं।
हियर बिकॉज अब देखिए टूल बदल गया, पहले बॉन्ड से वो लेता था उधार, अब वो क्या करता है कि नहीं नहीं उधार तो नहीं लेना, वो बड़ा मसाइल है मेरे लिए, तो हम सीधे ही नोट छाप ले ताकि हमें जो है वो आसानी हो। सो हैंस बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ मनी इज चेंज, क्योंकि अब जब बॉन्ड नए नोट छापते हैं तो मनी की जो क्वांटिटी है वो इजाफा हो जाएगा, पहले 10 नोट थे अब 20 फर्ज करे हो जाए, तो प्राइस लेवल विल चेंज प्रोपोर्शनलिटी क्लासिकल के मुताबिक, मनी क्वांटिटी थ्योरी के मुताबिक, मनी के मुताबिक जब मनी की क्वांटिटी जिस प्रोपोर्शन से बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन से प्राइस लेवल भी बढ़ते हैं, ये हम पहले बयान कर चुके हैं। We have previously analyzed the way increase the money supply shift the aggregate demand curve up along the vertical aggregate supply curve, raising the price level high। तो हमने यहाँ पर देख लिया था कि जब आपका ये पीछे हमने देखा था कि आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई कर वही है और आपकी जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है, तो यही बात उन्होंने यहाँ पर। तो at the new equilibrium the increase in the consumption fall in saving, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी इन द क्लासिकल सिस्टम, द सोर्स ऑफ इंक्रीज इन द मनी सप्लाई डज नॉट मैटर। वो कहता है कि मनी सप्लाई का सोर्स क्या है, कहाँ से आया, कब आया, क्यों आया, इसके इसका कोई हमारे से तल्लक नहीं, यानी वो मनी सप्लाई के बारे में, के सोर्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। तो जाहिर है ये तो अगर देखा जाए तो ये तो सेंट्रल बैंक ही काम करता है। अ गिवन चेंज इन मनी सप्लाई हैज द सेम इफेक्ट, जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी सेम इफेक्ट वेदर इट एंटर्स द इकोनॉमी, जब ये पैसा जो गवर्नमेंट ने प्रिंट किया है ये इकोनॉमी में आएगा टू फाइनेंस एंड इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और गवर्नमेंट इस पैसे से अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगी, एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करेगी, और इन अनदर मैनर या किसी भी तरीके से ये इकोनॉमी पे पैसा लगाएगी। तो पुट डिफरेंटली, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये पैसा इकोनॉमी में थ्रू हो जाएगा और गवर्नमेंट इसके पैसे को किसी अपने एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देगी, या दूसरे अल्फाज में पुट डिफरेंटली एंड दिस इज द क्रूशियल पॉइंट, ये बड़ा ही नतीजा खेज पॉइंट है, द इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज नो इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड, कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसका एग्रीगेट डिमांड पे कोई इंडिपेंडेंट असर नहीं पड़ेगा। तो दूसरे अल्फाज में मैं आपको स्टूडेंट अंदर की बात बताती हूँ, वो ये है कि क्लासिकल जो है ना फिस्कल पॉलिसी पे वो यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग है, यानी वो फिस्कल पॉलिसी किस कहते हैं ना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और गवर्नमेंट की जो है वो अखराजात और गवर्नमेंट की जो इनकम की पॉलिसी है, तो वो कहता है कि अगर उसके एक्सपेंडिचर में चेंज आ जाएगा तो उससे एग्रीगेट डिमांड यानी C+I+G इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी पॉलिसी का कोई असर वो डालते ही नहीं है। अब हम देखते हैं डिमांड साइड इफेक्ट्स क्या हैं। As long as we consider only the effects on demand, analysis of change in tax produces results that are analogous to those for the government spending। तो हम कहते हैं कि हम जब तक we consider only the effects on demand, जब हम डिमांड के ऊपर इफेक्ट कंसिडर करते हैं ऑफ अ चेंज इन टैक्सेस, जब टैक्स के चेंज होने से डिमांड में चेंज आती है, प्रोड्यूस रिजल्ट दैट आर एनालगस टू दोज फॉर द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो हमें जो है वो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे जैसे हमने गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के ऊपर के रिजल्ट लिए थे। फॉर एग्जाम्पल द इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड, हम ये कहते हैं कि फर्ज करें कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। डिस्पोजेबल इनकम क्या है, आफ्टर टैक्स इनकम, यानी वो इनकम जिसके ऊपर कंज्यूमर्स को कंट्रोल हो और उसके ऊपर अख्तियार हासिल हो, ऐसी इनकम को डिस्पोजेबल। तो जो अगर जिस इनकम में अभी टैक्स नहीं दिए वो सारी इनकम उसकी डिस्पोजल पे नहीं है, लिहाजा हम डिस्पोजेबल इनकम से कहते हैं जिस पे जो कि आफ्टर टैक्स इनकम होती है। अ टैक्स कट वुड स्टिमुलेट कंजम्पशन। आप जब देखें जब गवर्नमेंट टैक्स कट करती है तो क्या होती है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, तो वो फिर अपनी इस खुशी में अपनी कंजप्शन बढ़ा देते हैं। टैक्स आफ्टर टैक्स जो है वो इनकम जो है वो उनकी बढ़ जाएगी तो कंजप्शन बढ़ जाएगी। इफ एवर द गवर्नमेंट सोल्ड बॉन्ड्स द पब्लिक टू रिप्लेस द रेवेन्यू लॉस्ट बाय टैक्स कट,
अब गवर्नमेंट जो है उसने टैक्स कट कर दिया, जो टैक्स कम किया है, तो गवर्नमेंट के उतने रेवेन्यू कम हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करती है, पब्लिक को उसको रिप्लेस करती है कि वो जितना टैक्स की अमाउंट में कमी हुई है उतना ही गवर्नमेंट क्या करेगी, उतने के बॉन्ड्स पब्लिक को सेल कर देगी। सो द सेम द क्राउडिंग आउट प्रोसेस वुड फॉलो। अब क्राउडिंग आउट क्या है कि एक में इजाफा दूसरे में कमी। आपने लोगों को तो आपने आपने लोगों को टैक्स कम करके रिलीफ तो दे दिया, लेकिन उस रिलीफ का अजाला आपने कैसे किया कि उतने के बॉन्ड्स बेच दिए। तो आपने क्राउडिंग आउट की, यानी कि आपने उसके असर को जायल कर दिया। तो एज अ केस ऑफ अ बॉन्ड फाइनेंस इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो अपने स्पेंडिंग को फाइनेंस करती है किससे, बॉन्ड से। सो द रिलीफ दैट द गवर्नमेंट हैज गिवन या गिव्स टू द people by the decrease in the taxes and thereby increasing their disposable income, the people would be happy, they will increase the consumption. But what the government does, the government has to compensate this gap of the revenue by uh, selling the bonds, and in this way the two effects will cancel each other. The equilibrium interest rate would rise. अब क्या होगा कि जब आप बॉन्ड्स लोगों को बेचेंगे, बच्चे ये बड़े गौर से सुने आप लोग, कि जब आप बॉन्ड्स लोगों को बेचेंगे तो जाहिर है कि आप उसको इस पे इंटरेस्ट रेट देंगे। आप इंटरेस्ट रेट तो दे रहे हैं आप, लेकिन आप देखें कि जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करके प्राइवेट सेक्टर के बैंकर से या बैंक से कर्जा ले लेते हैं, तो बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स का कर्जा ले लेती है सेलिंग बॉन्ड से। तो जो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कर्जा जो है वो कम बचता है, लोनेबल फंड्स। मसलन अगर 100 रुपए प्राइवेट सेक्टर के पास है, तो वो 70 रुपए गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड सेल कर देती है, और बाकी 30 रुपए बचते हैं। और इतना बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, ये 30 रुपए को लेने के लिए भागेगा। दे विल फॉलो इट, दे विल चेज इट, उसको चेज करेंगे। जब चेज करेंगे तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाएगा तो प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग हाई है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है। अब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। एंड देयर वुड ऑल्सो बी एन इंटरेस्ट रेट इंड्यूस्ड राइज इन सेविंग। उधर आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो डिसहार्ट हो गए हैं, लेकिन जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करेंगे, प्राइवेट प्राइवेट तौर पर जो कंजम्पशन सॉरी सेविंग है उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि हायर द इंटरेस्ट रेट हायर वुड बी द सेविंग, बिकॉज सेविंग इज द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो मीनिंग दैट कंजम्पशन वुड फॉल। तो क्या होगा कि जब आप सेविंग सी प्लस ऐसा ना आपकी आमदनी का हिस्सा, तो अगर आपकी कंजम्पशन से जो आपकी सेविंग बढ़ जाएगी तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, वुड फॉल बैक टुवर्ड द प्री टैक्स कट लेवल। तो जितना गवर्नमेंट ने, अब ये बड़ा नतीजा खेज फिक्रा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्रा है, कि गवर्नमेंट ने जो एक गेम स्टार्ट की थी टैक्स कट करके लोगों को खुश करने की, ताकि उनके कंजम्पशन बढ़ जाए और लोग जो है वो खुश हो जाए। अक्सर ये डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जब ये अपनी कैंपेन चलाते हैं, तो ये इनके सियासतदान अमेरिका के या किसी भी डेवलप कंट्रीज के, तो वो क्या करते हैं कि वो बड़ा मैनिफेस्टो देते हैं कि हम जो टैक्स कट कर देंगे, तो लोग तो खुश हो जाएंगे। लेकिन जो एक जीरक और समझदार जो इंडिविजुअल है वो तो समझता है कि जो टैक्स कट किया है ये तो या तो गवर्नमेंट कर्जा लेगी या नए नोट छापेगी, तो ये अल्टीमेटली हमें या तो इन्फ्लेशन टैक्स की सूरत में पैस कीमत अदा करनी पड़ेगी, या फिर गवर्नमेंट जो है वो क्या उसे कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, उसकी वजह से सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। तो अब वो क्या है कि जब सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट तो फॉल होगी और देयर विल बी इंटरेस्ट इंड्यूस सेविंग बढ़ जाएगी, मीनिंग दैट कंजम्पशन वुड फॉल। तो वो जो कंजम्पशन में जो इजाफा किया था गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दे के, और वो फिर कंजम्पशन में कमी आ जाएगी, प्री टैक्स कैट लेवल पे आ जाएगा। यानी प्री जहां से शुरू हुई थी वही जहां पर
टैक्स कट से पहले लोगों का कंजम्पशन का पैटर्न था, लोग उसी पैटर्न पे वापस चले जाएंगे, उसी लेवल पे वापस चले जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्राउडिंग आउट होगी। इन द केस ऑफ द टैक्स कट एज विद एन इंक्रीज इन स्पेंडिंग, कि जब टैक्स आप कट करते हैं, जब स्पेंडिंग एज विद एन इंक्रीज इन स्पेंडिंग एग्रीगेट डिमांड वुड नॉट बी अफेक्टेड। तो एग्रीगेट डिमांड के यही हिस्से है ना, C+I+G है। तो अगर आपने जो है वो क्या करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो है वो कंजम्पशन को बढ़ाया, तो इधर से जो है आई कम होगी, तो फिर C+I तो वही रह गया फिर, ठीक है। और गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाए थे वो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक चीज दूसरों को कैंसल आउट करेगी। सो आपको हम नतीजा ये निकाल सकते हैं कि देयर विल बी क्राउडिंग आउट, टैक्स कट विल इंक्रीज द, अगर मैं यहाँ पर लिखती इक्वेशन, तो हम कहते हैं सी, आप डाउन एरो लिखें तो आपका सी जो है वो, आपका वाई जो है डिस्पोजेबल इनकम, आप लिखें डी वाई डिस्पोजेबल इनकम, या वाई डी लिखें, जो क्या होता है इंक्रीज होता है। सबसे पहले क्या है, टैक्स, टैक्स के अंदर क्या है, डिक्रीज हुआ है। उससे क्या होगा कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम के अंदर आप एरो ऊपर करें, ये आपका इंक्रीज हो जाएगी, फिर लोगों की जो है वो क्या होगा, सी वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जब गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड सेल करती है, तो फिर क्या होता है कि उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, इंटरेस्ट रेट के हाई होने की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नीचे चले जाएगी, और आपकी जो सेविंग है वो बढ़ जाएगी, सेविंग बढ़ने से कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो कंजम्पशन प्री टैक्स कैट लेवल पर वापस चली जाएगी। ये है क्लासिकल का नुक्ता नजर, कि जहां पर हम देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में कोई चेंज नहीं है। तो यही वो शो करना चाहते हैं कि डिमांड साइड के ऊपर वो फैक्ट असरअंदाज होते ही नहीं। If revenue lost because of the tax cuts were replaced by printing new money, अब पहले तो ये था कि जब टैक्स कट किया था, तो दो सिचुएशन आ गई ना, एक ये कि आपने जो है वो आपने जो है वो बॉन्ड को फाइनेंस किया है, बॉन्ड को सेल करके फाइनेंस किया है, और दूसरा ये है कि आपने, अब आप जो है नए नोट छाप दें, then with an increase in government spending the money creation would increase aggregate demand। जब मनी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, प्रोजेक्ट गवर्नमेंट खर्च करेगी, लेबर को पैसा मिलेगा, वो सारे मार्केट को भागेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज हो जाएगी, एंड टैक्स कट वुड कॉज द प्राइस लेवल टू राइज। तो इसकी वजह से, टैक्स कट की वजह से कीमतें बढ़ जाएंगी। तो टैक्स कट की वजह से क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। सो अगेन, तो it would simply be increase in the money supply that affected the price level। क्वांटिटी थ्योरी के मुताबिक के मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइसेस भी प्रोपोर्शनली बढ़ती हैं। द टैक्स कट वुड हैव नो इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। तो फिर वो साबित हो गया कि टैक्स कट का एग्रीगेट डिमांड पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सूरतों में, अगर आप टैक्स कट को फाइनेंस करेंगे बॉन्ड से या नए नए छाप कर, तो क्लासिकल ने ये नतीजा निकाल दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एग्रीगेट डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। किसका, टैक्स कट का मतलब है फिस्कल पॉलिसी का। केन्जियंस को हम फिस्कलिस्ट कहते हैं, लेकिन क्लासिकल्स जो है वो फिस्कल पॉलिसी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्लासिकल के मुताबिक लेजिस फेयर इकोनॉमी है, there is no role of the government and there is no role of the fiscal policy। तो आपने साबित भी कर दिया, हालात मैकेनिज्म ऐसा बना के टैक्स कट इज अ पॉलिसी वेरिएबल, फिस्कल पॉलिसी वेरिएबल। तो टैक्स कट के जो है वो करने से आपके जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अनअफेक्टेड रहेंगे। सो देयर विल बी नो चेंज इन द एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू द फिस्कल पॉलिसी। अब आप आगे चलते हैं सप्लाई साइड इफेक्ट पे। इफ द टैक्स कट वाज लमसम टैक्स, आप फर्स्ट करें सप्लाई साइड इफेक्ट में, अगर आप टैक्स लमसम है, मीनिंग दैट लमसम टैक्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल दैट एवरी हाउस होल्ड रिसीव्ड अ टैक्स कट ऑफ $100, जिसमें आप सारे हाउस होल्ड को एक जैसा बेनिफिट देते हैं। मसलन आपने कहा कि एक ही असूल लागू होगा, अगर तो आप कहेंगे ना टैक्स कट 5% है, तो 1000 का 5% और होगा, 1 लाख का 5% और होगा, 1 करोड़ का 5% और होगा, तो हर एक को डिफरेंट रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आप लमसम टैक्स की बात करें, तो उसमें सारों को आप एक जैसा ही बेनिफिट देते हैं। बेशक अमीर है कोई गरीब है, आप कहते हैं सबको हम $100, $100 का के टैक्स में कमी करते हैं। देन द डिमांड साइड इफेक्ट वुड बी ऑल दैट वी वुड नीड टू कंसिडर। तो डिमांड साइड के इफेक्ट वो हैं जो अब हम
देखेंगे कि इसका असर क्या होगा. बट सपोज द टैक्स कट वाज इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड इनकम टैक्स रेट्स. तो हम आप कहते हैं कि वो हमें दैट द डिमांड साइड इफेक्ट वुड नीड टू कंसिडर. तो डिमांड साइड के इफेक्ट को दोबारा देखना पड़ेगा. लेकिन अगर टैक्स कट जो है इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड इनकम टैक्स रेट्स हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपने 10% रेट से टैक्स कट जो 5% पे कर दिया या 40 से आपने 20% पे कर दिया, तो फिर क्या होगा. सपोज द मार्जिनल इनकम टैक्स रेट पर कट, ये मार्जिनल इनकम टैक्स रेट्स जो है वो कम कर दिए. कि असल में जब हम मार्जिनल टैक्स रेट की बात करते हैं कि हर अगली इनकम के ऊपर बढ़ती है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता है. तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम स्लैब्स. कि अगर फर्ज करें कि यहाँ गवर्नमेंट ने स्लैब बनाई होती है कि अगर अगर कोई शख्स की सालाना इनकम 12 लाख है, मैं अक्सर वैसे ही कह रही हूँ, तो वो जो है वो उसके ऊपर टैक्स छूट है. अगर वो 12 लाख 1 रुपए हो जाएगी तो उसके ऊपर जो है वो 10% टैक्स लगेगा. अगर वो 15 लाख हो जाएगी तो हम 15% टैक्स लगेगा. इस तरह टैक्स रेट जो है वो बढ़ाता चला जाता है. सपोज द टैक्स रेट वर कट फ्रॉम इनिशियल ऑफ 40% टू न्यू रेट ऑफ 20%. अब वो टैक्स कट करता है कि टैक्स कट 40% की बजाय अब लोगों को 20% देना पड़ेगा, यानी 50% इसमें कमी आएगी. इंस्टेड ऑफ 40 सेंट एवरी एडिशनल डॉलर बीइंग टेकन एज अ टैक्स पेमेंट, ओनली 20 सेंट्स वुड बी टेकन. यानी अब आपको हर 100 के पीछे पहले 40 रुपए टैक्स देना पड़ता था, फर्ज करो अब 20 देना पड़ेगा. In the classical model, such a change would have an incentive effect on labor supply. अब यहाँ से हम लेबर मार्केट का काम शुरू हो जाएगा. अब वो ना देखे ना, जिधर वो लेके जाना चाहता है उधर लेके जा रहा है. तो अब वो कहता है कि अब ये जो है वो लेबर मार्केट में इसका अफेक्ट होगा. द चेंज वुड अफेक्ट द लेबर सप्लाई साइड. लेबर सप्लाई कौन करती है? लेबर, मैं और आप इंडिविजुअल उसके सप्लाई करते हैं. एंड इनफैक्ट इसकी वजह से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में चेंज आएगी. तो मैं और आप अगर लेबर हैं और हमारी इनकम पे पहले 40% टैक्स लगता था, तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम थी, लेकिन अब 20% टैक्स लगेगा. तो 20% टैक्स से हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी. जिसकी वजह से दो तरह के असरात होते हैं लेबर पर. एक तो ये, कुछ लोग तो इनकम टैक्स के कम होने से वो अपनी जो है वो क्या करते हैं, लेबर सप्लाई बढ़ा देते हैं, ताकि वो, क्योंकि अब ज्यादा पैसा उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता, सारा उनकी अपनी जेब में आएगा या ज्यादा अपनी जेब में आएगा. लेकिन दूसरी साइड पे एक ये वो लेबर है जो कि काम करने से बहुत तंग है, उन्हें लेयर की जरूरत है. तो कहेंगे वो कंटेंटेड भी हैं और वो कहते हैं कि जी हम तो टैक्स कट हो गया, अब हमारी इनकम ज्यादा हो गई है डिस्पोजेबल, तो अब हम लेयर की तरफ तवज्जो देंगे, हम काम कम करेंगे. तो एक तरफ लेबर पे पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है और दूसरी लेबर पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है. सो हम अब इसको हम ले लेते हैं कि क्या है ये फिगर. टैक्स पॉलिसी हम लेते हैं कि फिगर 4.6 illustrate the effect of cut in the marginal income tax rate within the classical model. ये मार्जिनल इनकम टैक्स रेट जो है वो, इसे हम मार्जिनल इसलिए इनकम कहते हैं कि आपकी जो है वो हर इनकम के ऊपर जो है वो कितनी इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगता है, ये मार्जिनल टैक्स रेट कहलाता है. हर बड़ी हुई इनकम के ऊपर आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा. पार्ट ए शोज द इफेक्ट्स इन द लेबर मार्केट. तो हम जरा इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 4.6 की बात करते हैं ना. तो पार्ट ए में हमने शो द इफेक्ट्स इन द लेबर मार्केट. जर्सी, क्या आपके पास यहाँ पर लेबर मार्केट है, ये पहली, यहाँ पर अन एन जो एम्प्लॉयमेंट है, और ये आपकी रियल वेज है, जो कि हमारे लेबर मार्केट के एक्सेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट और रियल वेज होती है. और ये सेकंड जो डायग्राम है, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है. जब लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम आता है तो वहीं से हमारा प्रोडक्शन मार्केट का प्रोडक्शन हमें नजर आता है. फिर प्रोडक्शन फंक्शन से हमने लेबर की सप्लाई कर भी डिटरमिन करते हैं कि इसी पे लेबर. तो हम इसको ए हिस्से में जो है वो जो बयान किया गया है, अ कट इन द टैक्स रेट वुड इंक्रीज द लेबर सप्लाई. पहला केस है जो मैंने दो लेबर के केस बताए हैं, किसी की सप्लाई बढ़ जाएगी किसी की कम हो जाएगी. तो कट इन द सप्लाई एट एनी वैल्यू ऑफ द प्री टैक्स रियल वेज एंड शिफ्ट द लेबर सप्लाई शेड्यूल आउट टू द राइट. दिस शिफ्ट follows because the worker is concerned about the after tax real wage which is in cases 1 minus t of y. तो वो क्या कहता है कि
जब टैक्स कम होता है तो वो लेबर जो ये समझता है कि अब टैक्स कम देना पड़ेगा तो हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा, तो वो क्या करता है कि हमारे पास ये सप्लाई ऑफ लेबर कर्व है, ये डिमांड फॉर लेबर कर्व है, इक्विलिब्रियम डब्ल्यू ओवर पी इक्विलिब्रियम वेज रेट है। जब टैक्स कट होता है तो वो अपनी लेबर सप्लाई बढ़ा देता है। ये आप देखें, ये 40% टैक्स पे था, ये 20% टैक्स पे लेबर सप्लाई बढ़ा देता है। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, रियल वेज डब्ल्यू ओवर पी वन जो है वो हमारा उसका मेयार शिफ्ट हो जाता है। और आगे देखते हैं, और अब क्या कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, यहाँ तक अभी आप देख सकते हैं। तो विच इज द, अब कहते हैं आफ्टर टैक्स रियल वेज विच इज इन दिस केस इज 1 - T ऑफ वाई। तो आफ्टर टैक्स रियल वेज जो है वो 1 - T ऑफ वाई, यानी आपकी जो है वेजेस आर वेजेस, ये यहाँ पर ना ये साइन सही नहीं है। जो रियल वेज है ना वो आपकी रियल वेज डब्ल्यू ओवर पी है, ये साइन शायद चेंज हो गया है कॉपी करते हुए। तो ये डब्ल्यू ओवर पी है, इसको जरा देख लें। वेयर टी वाई इज द मार्जिनल इनकम टैक्स रेट, टी वाई क्या है, 1 - T ऑफ वाई हमने किया है, ये मार्जिनल टैक्स रेट है। इफ वी हैड इंक्लूडेड एन इनकम टैक्स इन आवर classical model chapter 3, the labor supply function would have been like this। तो हमारे पास अगर हम वो वाला मॉडल जहाँ पर हम सप्लाई ऑफ लेबर लगाते थे कि एन इज जी ऑफ डब्ल्यू और पी था, तो अब क्योंकि टैक्स रिलीफ मिल रहा है तो आपकी जो रियल वेज है टैक्स के मार्जिनल टैक्स से जो 1 - T ऑफ वाई जो है, आपका मार्जिनल टैक्स 1 में से -T ऑफ वाई करेंगे तो उसे रियल वेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी जितना ये बढ़ेगा उतना सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगा। फॉर अ गिवन प्री टैक्स रियल वेज डब्ल्यू और पी, यानी टैक्स से पहले की जो रियल वेज थी, कट इन इनकम टैक्स रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन द आफ्टर टैक्स वेज एंड देयरफॉर इंक्रीजेस लेबर सप्लाई। तो आफ्टर टैक्स जो है वो जाहिर है आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो आप फिर क्या करेंगे, डिस्पोजेबल इनकम, तो आपकी लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी। इन फिगर 4.6a, एज अ मार्जिनल इनकम टैक्स रेट फॉल्स फ्रॉम 40% to 20%, the labor supply schedule shift from NSTO NS आपका लेबर सप्लाई एट टी ऑफ वाई इज इक्वल टू 40 to NS T ऑफ वाई इज इक्वल टू 20। इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम N0 to N1। पार्ट बी, अब देखें ये मैंने बता चुकी, आपका जब टैक्स कट जब 40 से 20% पे आ जाएगा तो आपकी लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी और ये रियल वेज का लेवल जो है वो नीचे आ गया। इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम एन नॉट टू एम, तो जाहिर है कि अब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, आपने आवर्स बढ़ा दिए हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। सो पार्ट बी ऑफ फिगर शोज द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन, मैं पहले बता चुकी हूँ, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एन नॉट टू एन वन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द लेबर सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन द आउटपुट। तो जब आपकी जहाँ वेयर देयर इज एम्प्लॉयमेंट, हायर द एम्प्लॉयमेंट हायर द ले, आपकी जो पहले पर आउटपुट आपकी वाई नॉट थी, जब लेबर सप्लाई बढ़ी है तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ा है, शॉर्ट पीरियड में होता है ना ये। तो आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ते हैं तो उसने वाई नॉट से वाई वन में इंक्रीज कर दिया है आउटपुट में। सो आपका टैक्स कट का पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, लेबर सप्लाई बढ़ी, आपकी जो है वो आउटपुट भी बढ़ गई। इन पार्ट सी, इन फिगर this increase in supply determine level of output. Y naught से Y1 is shown shift of the right in the aggregate supply curve, YS T of Y। तो हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है वो लेबर का सप्लाई कर्व नहीं है, सॉरी, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। जैसे आपका शॉर्ट एक पीरियड में आपका लेबर की एम्प्लॉयमेंट ये थी, तो अगले शॉर्ट पीरियड में लेबर की सप्लाई ये होके ये लॉन्ग रन बन जाता है। तो यहाँ पर ये आपके पास जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो क्या था, वो वाई नॉट था और एग्रीगेट डिमांड वाई डी था। तो यहाँ पर आपकी प्राइसेस पी नॉट है। तो जब लेबर की सप्लाई एन नॉट से एन वन हुई है, प्रोडक्शन वाई नॉट से वाई वन हुई है, तो यहाँ भी वो प्रोडक्शन वाई नॉट से वाई वन हुई है। तो यहाँ पर जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो स्टूडेंट ये बात याद रखें कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट ये होता है, डिमांड वही है तो सप्लाई के बढ़ने से प्राइसेस हमेशा नीचे आते हैं। ये भी बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। So we can say that
In the classical system, the quantity of money determines the प्राइस लेवल। तो क्लासिकल की क्वांटिटी थ्योरी में क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो डिटरमाइन करती है प्राइस लेवल एंड द लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम। तो आपके लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम को जो है वो डिटरमाइन करती है। तो क्या कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो आपके एक तरफ प्राइस लेवल को बढ़ाती है यानी चेंज करती है और डिटरमाइन करती है, दूसरी तरफ नॉमिनल इनकम को भी डिटरमाइन करती है। क्योंकि आपने देखा पिछले लेक्चर्स के अंदर कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो नॉमिनल इनकम भी बढ़ती है। इन द सेंस मॉनेटरी पॉलिसी वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो पता चला कि क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मॉनेटरी पॉलिसी का रोल इनके अंदर ज्यादा है। सच स्टेबल मनी वाज रिक्वायरमेंट फॉर स्टेबल प्राइसेस। तो अगर मनी की क्वांटिटी स्टेबल रहेगी तो प्राइसेस स्टेबल रहेंगी। इन अनदर सेंस मनी वाज नॉट इन अदर सेंस मनी वाज नॉट इम्पोर्टेंट। तो मनी की इनके नज़र में कोई और इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि ये है कि मनी की वजह से प्राइस लेवल डिटरमाइन होता है, नॉमिनल इनकम। और स्टेबल मनी जो है वो मनी सप्लाई जो है वो प्राइसेस को स्टेबल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। बाकी इसका कोई रोल नहीं है मनी का। द क्वांटिटी ऑफ मनी डिड नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ रियल वेरिएबल्स इन द सिस्टम। तो क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो रियल वेरिएबल्स लाइक आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट रेट को क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज नहीं करेगी। द सप्लाई डिटरमाइन नेचर ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट वाज द सब्जेक्ट ऑफ चैप्टर 3। जो हमने कहा था कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में सप्लाई फैक्टर की वजह से चेंज आती है, डिमांड की वजह से चेंज नहीं आती। तो हम ये कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो तो यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ कि क्लासिकल के मुताबिक देयर इज डायकोटमी बिटवीन द रियल वेरिएबल्स एंड द नॉमिनल वेरिएबल्स। डायकोटमी का मतलब है वो रियल वेरिएबल्स को किसी और तरीके से देखते हैं और नॉमिनल वेरिएबल्स को किसी और तरीके से देखते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो आपके रियल वेरिएबल्स को चेंज नहीं करेगी और ना ही रियल इंटरेस्ट रेट को चेंज करेगी, बल्कि सप्लाई डिटरमिन नेचर ऑफ आउटपुट आपकी एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को चेंज करेगी। द थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट वाज वी हैव कंस्ट्रक्टेड हियर इज अ रियल थ्योरी। इंटरेस्ट रेट की थ्योरी को हम रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं। दैट डिड नॉट मेंशन द क्वांटिटी ऑफ मनी, कि जिसने मनी की क्वांटिटी का कोई जिक्र नहीं किया है। तो इंटरेस्ट रेट के अंदर हम जो रियल वेरिएबल्स की बात करते हैं, आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है और इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है। तो हमने ये कहा है कि थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट में जो है वो हमने कहीं भी मनी की क्वांटिटी को जिक्र नहीं किया, यानी ये बाहर बाहर एग्जोजिनस ही है। हमने जो बात की है वो रियल वेरिएबल्स की बात है। फैक्टर सो पता चला कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रियल वेरिएबल्स का दायरा और रखते हैं, नॉमिनल वेरिएबल्स का दायरा वो रखते हैं और ये कहते हैं कि आपकी जो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट और सप्लाई डिटरमिनेंट है वो उसका तल्लुक जो है वो मनी सप्लाई से नहीं। फैक्टर डिटरमिन द इंटरेस्ट रेट फॉर रियल इन्वेस्टमेंट डिमांड, वो कौन से हैं मैंने पहले बता दिया है। इन्वेस्टमेंट डिमांड है जो कि रियल फैक्टर्स हैं, वो है रियल सेविंग है एंड रियल वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट। तो सारे रियल वेरिएबल की बात करते हैं। व्हाट द क्लासिकल इकोनॉमिक्स कॉल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड थ्रिफ्ट। तो जिसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट व्हाट द क्लासिकल कॉल आपकी रियल वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट है कि आपकी जो कॉल द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड थ्रिफ्ट, जिसको हम प्रोडक्टिविटी और थ्रिफ्ट का कंसेप्ट कहते हैं। अब हम नतीजा निकालते हैं। पीछे हमने ये देख लिया कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स से मुतासर होता है। और अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई और इससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती है, तो फिर उन्होंने टैक्स कट की पॉलिसी और फिर नई मनी नोट प्रिंट करके जो बताया है कि आपके एग्रीगेट डिमांड में कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आपकी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो
सप्लाई डिटरमिनेंट है, वो डिमांड डिटरमिनेंट नहीं है। और इस नतीजे के बाद हम इसको सम अप करते हैं, कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमी स्ट्रेस द सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी ऑफ द इकोनॉमी। क्लासिकल के मुताबिक इकोनॉमी एक सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम पे चलती है, जिसमें डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस काम करती हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी यानी टैक्स कट का कोई भी रोल नहीं है। फ्री फ्रॉम destabilizing government actions, the private sector would be stable एंड फुल एम्प्लॉयमेंट वुड बी अचीव। तो उसने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो अपना डिस्टेबलाइजिंग रोल नहीं पे नहीं करेगा अपनी पॉलिसियां बना के, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्टेबल हो जाएगा, और एग्रीगेट जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस उसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे जिसके जो के लोग चाहेंगे, और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाएगा। सो द फर्स्ट ऑफ द सेल्फ मैकेनिज्म इज इंटरेस्ट रेट। वो कहता है कि सेल्फ मैकेनिज्म कौन सा है, वो उसने प्राइसेस को कहा है वो कौन सा है। पहला उसने कहा है कि इंटरेस्ट रेट इज एट द हार्ट ऑफ, बिकॉज क्लासिकल सिस्टम एंड आल्सो इन द कैपिटलिस्टिक सिस्टम। तो कहता है कि वो चीजें वो जो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं स्टेबलाइजिंग में, वो है इंटरेस्ट रेट विच जस्ट टू कीप स्टॉक्स टू सेक्टोरल डिमांड फ्रॉम अफेक्टिंग एग्रीगेट डिमांड। तो वो क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो एडजस्ट हो जाता है टू कीप शॉक्स टू सेक्टोरल डिमांड। जब सेक्टोरल डिमांड में शॉक्स आते हैं और जो एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो फौरन एक इंटरेस्ट रेट आके पार्ट प्ले करता है, और वो स्टेबलाइज इकोनॉमी को कर देता है। द सेकंड ऑफ द सेट ऑफ स्टेबलाइजर द फ्रीली फ्लेक्सिबल प्राइसेस एंड मनी वेजेस के। अब एक इंटरेस्ट रेट होगा, और दूसरा ये कि फ्री और फ्लेक्सिबल प्राइसेस हैं जो मार्केट में राइज हैं, और मनी वेजेस हैं। तो उन्होंने कहा कि मनी prices and money wages are flexible upward and downward. So इनमें जो flexibility है which keep changes in the aggregate demand, जो aggregate demand को change करते हैं for affecting output, वो aggregate demand फिर output को affect नहीं कर सकती। So flexible ability of prices and wages is crucial to the full employment properties of the classical system। वो कहता है classical system जो है वो flexible prices और वेजेस मनी वेजेस के बगैर चल ही नहीं सकता। तो इसी के ऊपर खड़ा हुआ है। इसलिए अगर मैं इन तीनों को मिलाऊं, तो मैं कहती हूँ वो जनरली अगर इन सारे को मैं बोलूं, तो हम कहते हैं प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। दिस इज द प्राइस ऑफ कैपिटल, दिस इज द जनरल प्राइस लेवल, एंड दिस इज द प्राइसेस ऑफ द से labor. So all prices are flexible, that is interest rate, जनरल प्राइस लेवल एंड मनी वेजेस, ये सारे फ्लेक्सिबल हैं, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी विच कीप चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम अफेक्टिंग आउटपुट, वो आउटपुट को अफेक्ट करने में एग्रीगेट डिमांड को कीप चेंजेस उनके चेंजेस के बारे में कंसर्न होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्राइसेस एंड वेजेस क्रूशियल है। अगर ये ना हो तो आपसे पूछा जाए कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम में क्यों हुई है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। The inherent stability of the private sector led classical economists to non-interventionist policy conclusion। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेबिलिटी इनकी वजह से इकोनॉमी में आएगी, जिसकी वजह से क्लासिकल नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि जब सारा सिस्टम ही खुद ब खुद सेल्फ एडजस्टिंग कर रहा है, तो क्या मसला है कि आप गवर्नमेंट को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। तो गवर्नमेंट अपना कोई पार्ट प्ले नहीं करेगी पॉलिसी के सेंस। So to be sure, many of the interventionists mercantilist policies that classical economists opposed, tariff, trade, monopolies, were a far cry from the macroeconomic stabilizing policy of the today. But the model itself argues for non-intervention is a very general sense। लेकिन वो कहता है कि आज के दौर में अगर देखा जाए, mercantilist जो कहते थे कि ये बहुत ज्यादा टैरिफ और ये लगना चाहिए, तो आजकल की जो स्टेबलाइजिंग पॉलिसी है से बहुत दूर हो गया है, क्योंकि अब तो ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा था। लेकिन ये मॉडल जो है वो नॉन इंटरवेंशनिस्ट
इन अ वेरी जनरल सेंस कि नॉन इंटरवेंशनिस्ट है, यानी इसमें फिस्कल पॉलिसी की कोई गुंजाइश नहीं। अब आखिर पे बात हम करते हैं डायकोटमी की। सेकंड सेंट्रल फीचर ऑफ क्लासिकल सिस्टम इज डायकोटमी बिटवीन द फैक्टर डिटरमिन द रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल्स। कहता है रियल वेरिएबल्स को कोई फैक्टर और मुतासर करते हैं और नॉमिनल वेरिएबल्स को कोई और मुतासर करते हैं, तो दोनों के दायरा अख्तियार में फर्क है। इन द क्लासिकल थ्योरी रियल सप्लाई साइड फैक्टर्स डिटरमिन द रियल वेरिएबल्स। तो आपके रियल वेरिएबल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को आपके सप्लाई साइड फैक्टर मुतासर करते हैं। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स प्राइमरली ऑन पॉपुलेशन। तो आउटपुट डिमांड और एम्प्लॉयमेंट का तलब जो है वो बुनियादी तौर पर आबादी के साथ है, टेक्नोलॉजी के साथ है और कैपिटल फॉर्मेशन के साथ है। कि जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और आउटपुट भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी बेहतर होगी, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को चेंज आएगी और कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से भी चेंज आएगी। लेकिन ये चेंजेस जो है वो लॉन्ग पीरियड में आएंगी, शॉर्ट पीरियड में नहीं आएंगी। द इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्टिविटी एंड थ्रिफ्ट। आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, आप वाहिदशारी पे भी डिपेंड करता है। मनी इज वेल डिटर्मिनिंग द नॉमिनल वैल्यूज बाय विच क्वांटिटीज आर मेजर्ड। तो मनी जो है वो नॉमिनल वैल्यूज को मुतासर करेगी, बट मॉनेटरी फैक्टर डू नॉट प्ले अ रोल इन डिटर्मिनिंग रियल क्वांटिटी। इसको आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को असरअंदाज नहीं होगी। सो वी कैन से दैट केन्स, अगर आगे हम केन्स पढ़ेंगे तो क्लासिकल। तो स्टूडेंट्स अब आपने आज देखा कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट की डिमांड कौन करता है, सॉरी लोनेबल फंड्स की डिमांड कौन करता है, लोनेबल फंड्स की सप्लाई कौन करता है, और फिर हमने देखा इंटरेस्ट रेट डिटरमिन कैसे होता है। फिर हमने देखा है कि क्लासिकल के मुताबिक गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी हमेशा फेल होती है, क्योंकि जब वो फिस्कल पॉलिसी से टैक्स कट करता है और फिर बॉन्ड को जो सेल करता है या वो नए नोट छापता है, तो एग्रीगेट डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की जो कोई भी टैक्स कट पॉलिसी है उसका गवर्नमेंट की एग्रीगेट डिमांड पे असर नहीं पड़ता। और ये भी कहा कि क्लासिकल में जो है वो रियल वेरिएबल्स का अपना दायरा कार है, नॉमिनल का अपना है, ये सेल्फ एडजस्टेड सिस्टम है। यहाँ ऑल प्राइसेस दैट इज प्राइस ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट, द प्राइस इज जनरल प्राइस लेवल एंड द प्राइसेस ऑफ द वेजेस आर फ्लेक्सिबल आउट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जिसकी वजह से आपकी जो है वो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम रहता है और फुल एम्प्लॉयमेंट भी रहती है। और इसलिए साबित हुआ कि इकोनॉमी तो खुद ब खुद ही चलती है अपनी फोर्सेस पे ऊपर, डिमांड और सप्लाई के ऊपर, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की कोई जरूरत नहीं है। सो देयर इज अ it is proved that according to classical there is a failure of the fiscal policy। और आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे केन्स ने फिस्कल पॉलिसी को इम्पोर्टेंस दी थी। तो स्टूडेंट आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। हम इसको अब अपनी जो है इस को ख़त्म करते हैं और आपको जो है वो अ, अल्लाह हाफिज भी कहते हैं। सो गुड बाय, see you in the next fifth chapter lecture। Allah Hafiz।